हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो आज डे वन है। थोड़ा डे वन में थोड़ा सा एक ओवरऑल जो कोर्स का जो इंडक्शन है, तो सर आपको वो एक्सप्लेन करेंगे। एंड इंडक्शन के अंदर मतलब कोर्स के कुछ रूल्स रेगुलेशंस वगैरह ये सब है, तो वो सारे कवर होंगे। एंड कवर होने के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे डिजिटल मार्केटिंग इंट्रोडक्शन, राइट? तो मैं भी ओवरव्यू मतलब सबसे पूछने वाला हूँ कि सबने जो ज्वाइन किया है तो उनका पर्सनली एक एक पर्सन का गोल क्या है डिजिटल मार्केटिंग का। तो वो इंडक्शन के बाद हम लोग वन टू वन वैसा कवर करेंगे। एंड आपके गोल के अकॉर्डिंगली हम लोग कोर्स को उस डायरेक्शन में हम लोग सीखना स्टार्ट करेंगे, राइट? Good afternoon. So we'll start shortly. Few people are expected on the way. Just about 5 minutes. We'll start. ठीक है, स्टार्ट कर दो। स्टार्ट करके मैं आ जाएंगे इसको ऑलरेडी ये लेट में 10 मिनट्स ऑनलाइन भी सारे हैं सबके हाथ सुजाता। थैंक यू सर। Hello, good afternoon, online guys. Can you hear me? Sujata, Fahad. Yes, yes. Hi. Yes, sir. Yes, sir. Hi, how are you? Good afternoon, sir. All good. What about Chalo, you? good. Okay. So we'll start. So hi guys. Good afternoon, first of all. So we'll start with the short rules and regulations basically, and we'll also have a short round of introduction. Hindi Marathi comfortable है ना? English. So I'll mix and match language में बात करेंगे. जिसमें basically we'll understand more about ourselves कि हम basically क्या कर रहे हैं अभी currently. Okay. So we'll start with online guys or offline guys? Fahad? Yes, we can start.
So I want you to go first. Okay. Acha. So Fahad, just introduce yourself. Basically, I just want 3 to 4 things like your name, your place, your overall work experience, and why digital marketing. Okay. So my name is Fahad Ansari. I stay in Thane, or my work location is also in Thane. My total experience of sales is 15 years experience. The idea of learning digital marketing is to adapt new marketing styles for bring sales for our company. That's the whole agenda. Perfect. Let's clap for Fahad. Good on the introduction. Okay, thank you, Fahad. Who's coming next? Sujata. Yes, good afternoon, sir. This is Sujata. Hi. Please go ahead. Currently, yes, I'm from CBD Billapunda, Mm-hmm. and currently working with career launchers as a center. And I want to learn digital marketing because I want to upskill myself. And then apart from the job, looking for a second source of income, Second source of income you're looking like at. freelancing. Yes, yes, yes. Chalo, perfect. Let's So clap for for that, I Sujata, want to please. learn digital marketing. Very good, very good. Okay. Who's online? There's anyone who's online apart from Sujata and Fahad? Sakib? Yes, sir. Good morning, sir. Yeah, good afternoon. Good afternoon, sir. Sorry. Yeah, Sakib. So I just want My name is everybody. Saqib Sheikh. Please go ahead, go ahead. Yeah. Sir, my name is Saqib Sheikh. I live in Mumbai, Mm-hmm. and currently I am started my internship at fintech brand named Maria Ross Paris, Mm-hmm. and my aim is to become a freelancer or digital marketing expert. Mm-hmm. Perfect, perfect. Chalo. So So we haven't met. I met I want to build Adnan. my career in digital marketing, sir. Chalo, good round of applause for him. So I haven't met you face to face, Sakib. I have met Adnan. So that was the reason I just wanted to know more about you. Okay. So we'll start. Anybody is Yes, sir. left online? No, na? Okay. No. Perfect. We'll start with the offline guys now. Who's coming first? Introduction. Who's coming first? कौन देगा introduction फिर? अहमद अंसारी नाम है मेरा। Okay. मुंबई में रहता हूँ। थाना में फिलहाल वर्किंग है। डिजिटल मार्केटिंग सीखने लीड वगैरह निकालने के लिए सेल्स को ग्रुप में मल्टीपल करने के लिए। और अभी कौन सी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं? रियल एस्टेट में। So guys, the reason I'm doing this because you should also know what people we are socializing with. Maybe in future कुछ connects you can help each other. Okay. We haven't met yet. ना शुभम ना? अपना फोन वर बोलणं झालं. माझं नाव शुभम शिंदे. मी रबाळला राहतो आणि मी इथे फ्रेशर म्हणून आलेलो आहे. आणि माझं डिजिटल मार्केटिंग शिकण्याचं मेन रिझन म्हणजे एक माझं करिअर मध्ये एक चांगली स्टार्ट व्हावी म्हणून मी डिजिटल मार्केटिंग शिकतो. Very good. Yeah. Shakib. My name is Shakib Khan and I am from Khagar, Navi Mumbai. And by profession, I am an interior designer. And that's why I choose digital marketing because I have to enhance my family business. Guys, we have interior designer in the house. तो कुछ आगे काम रहेगा तो ये वाली. Yeah, please Samir. आपके साथ तो है फिर भी बताइए इंट्रोडक्शन आपका. Myself, Samir Ansari from Kalangudi, and I did my graduation. I did computer science in graduation, and I'm doing digital marketing because I like creativity. Yeah, I've seen that your creativity. Absolutely. And more you are more into freelancing, right? Bas. Chalo. Chalo, let's clap for you as well. Yeah, and please go ahead. My name is Tina. I'm staying in Nehru. I want to go with this because I have recently started my website for which I want to learn how to do ads and all everything to grow my business. Perfect. And I would like to add one good thing about Tina ma'am because she is the only student on the first day she came and she enrolled. Let's clap for her. So, like your decision maker, I really like the way you have thought in your mind. Altogether business mind. Perfect. मॅडम तुमच्याबद्दल सांगा डिटेल मध्ये काय करताय आपण कुठे राहताय. माझं नाव मयुरी आहे. राहायला पनवेलला आहे. मी रिअल इस्टेट फील्डमध्ये 2 वर्ष झाली काम करते. तर मला रिअल इस्टेटचा बिझनेस कशावर डिपेंड होता ते माहित होतं की लीडवर सगळं होतं. तर त्यामुळे लीड कुठून येतात तर ते माझ्यासाठी जास्त
विचारायची सगळ्यांना कुठून येतात तेव्हा मला समजलं डिजिटल मार्केटिंग बद्दल. तर त्या सरांना मी सारखं क्वेश्चन करत विचारत राहिली आणि मी पण स्वतः सर्चिंग करत राहिली. तेव्हा मला हे सर तुमच्याशी बोलणं झालं. मग मी enroll. So almost we were in talking terms from almost 1.5 months. Reasons she was not able to travel because she is traveling all the way from Panvel. But then she decided. Amazing. So big round of applause for all of you. You all guys have decided and welcome on board with Growtech Digital family. Okay, let me give you a short introduction of myself. My name is Naveen Sharma and I am the co-founder of this brand Growtech Digital Academy. Ahmed Ansari sir is the founder who is sitting here and we'll be detail उनके बारे में बात करेंगे. So apart from Growtech Digital Academy, we have multiple companies in the market. I can name those companies: D2 Marketing, Marketing की दुनिया, Identity Light Services Private Limited. You talk about go high level. We have our own CRMs in the market. Castle Villa, these are our brands in the market. So we run like 6 to 7 companies in the market. So our core niche is into training of digital marketing. So we have almost an experience of 10 plus years, okay, of training into digital marketing in here. So talking about us, we have trained doctors, lawyers, chartered accountants, business people, entrepreneurs, freelancers, homemakers who want to restart their career and so on, students basically. Alright. You train lawyers in which sense? Means, how they all want to make some digital additional source of marketing? income. Additional source of income. Okay. They want to switch to freelancing because By profession even I am lawyer, but that's why I asked you. अच्छा. Perfect. अच्छा, you're a lawyer. Again, lawyer in house, guys. तो कुछ भी देगा in future तो ठीक है, perfect. Alright. So this is all about us, and the reason I'm here is, guys, I just wanted to give you, without taking much time of yours, I'm not the trainer first of all. I will introduce Ahmed sir as well. तो इस 10 मिनट में हम कुछ चीजें समझेंगे because basically हम as a family start किया हमने ये कोर्स के, तो कुछ basic rules and regulations हैं, we have to follow that. Okay, so we are done with our introduction part. So so talking about the punctuality and attendance, not like Gurukul, हम कोई school college में नहीं, we all are mature people, but we have to value time because कैसा है कि time is very important for all of us, right? तो क्या करना होगा, what we have to do, we have to be on time on all sections. I can genuinely understand कि traveling है, हम traffic में रहते हैं, नवी मुंबई में रहते हैं, मैडम पंद्रह से तो 10 मिनट हो जाएगा, तो उसके कोई प्रॉब्लम नहीं, but try to be on time, guys. Okay, for offline guys, it is inevitable or mandate to attend 80% of offline lectures. Offline आने का रीजन ही है 100% करिए, but the minimum criteria आपका automatically बोर्ड से यहाँ पे अटेंडेंस लग जाता है. ओके, तो 80% का आपका क्या चाहिए, अटेंडेंस. ओके, वो मार्क हो गए एवरी मंथ में आपको, ठीक है, we'll talk on that. And for the online guys, it is 100% or 90% minimum. Okay, online guys are with me. सुन रहे कि सो गए? Yes. ज्यादा बोर नहीं करूंगा, 10 मिनट में जाऊंगा मैं. आ रहे सर, ठीक है. Alright, so talking about mobile phones, it is highly requested. You can keep your mobile on silent mode or maybe switch off or vibration. In case you are getting very important call, जो inevitable call है, आप नहीं मना कर सकते उस कॉल पे. सर कुछ पढ़ा रहे हैं तो क्या है, सबका लिंक ब्रेकअप हो जाता है. Seek permission, go outside, take the call and you can come. ठीक है, ये बेसिक चीजें थोड़ी ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, so we have to seek permission from the sir. Active participation is required. अभी क्या होता है कि हम काम करते रहते हैं, अपने को टेंशन रहते हैं, पर्सनल रहते हैं, ये रहते हैं. So when you are in the class, we have to be very active. I should say that very proactive. जो भी doubts हैं, queries हैं, सर सामने हैं. He's got a great expertise. He is technically very sound. जो भी doubts queries हैं, एक बार, दो बार, 5 बार, 10 बार, you have to clarify. Then is it. Okay. Alright, adding to it, आपको कुछ केस स्टडीज, कैप्शन प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे और उसके ऊपर जैसे कि अभी you have got your own brand, she has got her own brand, he's got her own brand, so you will be working on your brand. तो जो भी आपके प्रोजेक्ट्स पे काम दिया जाता है, मान लीजिए 3 दिन की क्लास है, आपको चीजें सिखाई है, and we are also expecting you to work on those projects, so we request you to जो टर्न अराउंड टाइम दिया जाता है वो आपको कैप्शन प्रोजेक्ट्स, हमने ग्रुप असाइन किया है आपको, उसमें आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह प्रॉपर्ली काम करना है. कुछ भी असिस्टेंस हेल्प चाहिए तो वी आर देयर फॉर यू गाइस. अच्छा, एनीबॉडी नोस व्हाट इज एलएमएस, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम? एनीवन, किसको पता है एलएमएस क्या होता है? रिकॉर्डेड क्लास. वेरी गुड. तो उसमें क्या होता है कि अभी अपना जो लाइव लेक्चर चल रहा है, सो इट इज गेटिंग रिकॉर्डेड.
ऑटोमेटिकली। ओके, क्या होता है कि कभी कभी आप क्लास में नहीं आ पाते ड्यू टू एनी स्पेसिफिक रीजन, तो क्या होता है जो आपका लेक्चर मिस हो गया उसका एक्सेस, उसके क्रेडेंशियल्स हम आपको शॉर्टली दे देंगे एक वीक में, इसका एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम रहेगा। तो मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट आपको 6 मंथ 12 मंथ्स के देते हैं, हम आपको लाइफ टाइम के लिए देते हैं, बट डू नॉट बी डिपेंड ऑन दैट पार्ट। बेसिकली रिवीजन के लिए इट इज ओके, बट कोर्स कंप्लीशन के बाद भी कोई दिक्कत है, कोई प्रोजेक्ट है, अभी रियल एस्टेट में बहुत दिक्कत आती है, यू नो दैट। तो उसमें कैसा है कि कुछ न्यू एडिशंस आते हैं, उसके लिए भी वी आर ओपन फॉर यू गाइस और जॉब के लिए, ठीक है। ऑलराइट, हाँ, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर एब्सेंटीज क्या होता है कि कोई रीजन से आप नहीं आ पा रहे हो क्लास में, मान के चलो आपकी कल तबीयत ठीक नहीं है, नहीं आ पा रहे, एक शॉर्ट रीजन से इन्फॉर्म कर दे ग्रुप में कि आई एम दिस, माय नेम इज दिस एंड दिस इज द रीजन आई एम नॉट एबल टू अटेंड द क्लास टुमारो। तो हमको भी पता रहता है कि ये रीजन से आप नहीं आ पाए, नहीं तो यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम द ऑपरेशन टीम। अगर 2 दिन आप कंटिन्यू नहीं आते हो, so you will get a call from the operation team कि why have you not attending lectures offline, online, what's it is, okay. Acha, now talking more about Ahmed sir. So Ahmed sir is in terms of age he is my junior, like he is almost 32 33, but at the age of 32 he is handling like 6 to 7 companies. He is the head of this company, you can say that. और जो D2 मार्केटिंग यूएस यूके के जो क्लाइंट्स हैं वो खुद हैंडल कर रहे हैं, ऐसा नहीं जाने के बाद भी रात को 2-3 बजे तक उनका काम चालू ही रहेगा, ठीक है। तो हिज niche is into ट्रेनिंग और टॉप नॉच ब्रांड्स रियल एस्टेट में उनका स्पेशलाइजेशन है। यू टॉक अबाउट गोदरेज, लोधा, ये ब्रांड्स के बड़े बड़े चैनल पार्टनर्स के साथ उन्होंने काम किया है, और अभी तक जो हमारा एड स्पेंड है दैट इज मोर देन 12 करोड़। यू अंडरस्टैंड गाइस, जो मार्केट में क्लाइंट्स के लिए हमने काम किया है ना, जो एड स्पेंड है दैट इज मोर देन 10 to 12 करोड़। तो वो लेवल की ट्रेनिंग आपको सर से मिलने वाली है, एंड ही इज वेरी फ्रेंडली, वेरी वेरी फ्रेंडली। आपको जैसा आपको लगेगा कि क्लासमेट ही आपका, आपके जितने भी डाउट्स क्वेरीज रहेंगे he will be there for you guys, okay. अच्छा, for any support and accessibility, that is my Kevin, maybe everybody has seen me and met me apart from Shubham, सबसे मिले, कुछ भी डाउट है, क्वेरी है, कुछ कनेक्ट नहीं हो रहा है या कुछ बताना है, तो feel free to come in, talk to me in my Kevin, I am very much accessible, morning 10 से लेके मैं 8:30 तक यहाँ पे रहता हूँ, okay. So or also you guys would be having my business number as well, you can reach out to me at that point as well. All right, so I'm almost guys done from my side. So you will be getting one Google reference form maybe today tomorrow. Anybody, any of your friend who is looking forward to learn digital marketing, wants to reshape their career, wants to learn freelancing, whatever, you can refer their name. I'm going to get in touch with those guys and we can go for it. Any doubts, queries, guys? Are we clear? Everybody on the same page? Online, offline, guys? समझ में आया सबको? Yes, yes. हाँ सर। चलो परफेक्ट। साकिब, फहद, सुजाता, एवरीबडी ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। और कुछ भी डाउट क्वेरी रहेगा तो आप मेरे तक आ जाइए और शॉर्टली आई लास्ट अहमद सर टू चिप इन एंड यू स्टार्ट द लेक्चर, ओके। गुड लक ऑल ऑफ यू। Thank you. इसी का करा देना सही है वैसे, तो जब डायरेक्ट आ जाएगी आपको दो साइड। लैप ऊपर कर दो ना, स्क्रीन पर नीचे नहीं आएगा। उसका आगे वाला ना, लेकिन इसका अहमद सर, ऑल योर्स, थैंक यू। ओके, तो इंडक्शन कैसा था? बढ़िया। ओके, तो ऑनलाइन ऑफलाइन मतलब जितने भी आए थे, मैं सबसे पहले एक एक से इंट्रोडक्शन करेंगे क्योंकि मुझे पता नहीं है। तो जिन लोगों के बारे में पता है, जैसे तमिल आपके बारे में पता है मुझे, एंड अहमद आपके बारे में पता है, बाकी लोगों के बारे में मुझे जानना है, और पर्टिकुलर आपने ये कोर्स क्यों ज्वाइन किया, आपका गोल क्या है, मुझे वो जानना है, राइट। तो यस, आसिफ आपसे स्टार्ट करते हैं।
साकिब yes My name is Shakib Khan. I am from Khalgar, Navi Mumbai. By profession, I am an interior designer. I chosen this digital marketing course because of I have to enhance my family business. okay तो ये आपका बेसिकली yes शुभम मेरा नाम शुभम शिंदे है, मैं रबाले में रहता हूँ और अभी इस साल ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। तो मेरा एक गोल है कि डिजिटल मार्केटिंग सीखने का, कि मेरा करियर अच्छे से स्टार्ट हो पाए और मैं नया स्किल सीखूँ। तो करियर आप स्केलिंग करने के लिए आप फैमिली बिजनेस को स्केल कर सकते हैं। यस अहमद आपका मुझे पता है अहमद रियल एस्टेट से बिलोंग करते हैं, उनको रियल एस्टेट अपने भाई के जो है उनके साथ में उनको अपने बिजनेस को ग्रो करना है, इसलिए उन्होंने ज्वाइन किया। यस प्लीज। मैं ऑनलाइन सेलिंग करती हूँ, ऑनलाइन सेलिंग भी रिसेंटली मैंने खुद का वेबसाइट चालू करने को किसी को दिया है ई कॉमर्स में। ओके तो ऐसा है कि सेलिंग के लिए ऐड कैसे रन करना है, क्या कभी क्या चेंज करना है, एवरी टाइम आई हैव टू डिपेंड ऑन दोस पीपल। वो फोन उठाएंगे नहीं उठाएंगे, टाइम पे मुझको काम है तो मुझे मजा नहीं आता है, मुझको टाइम पे मेरा काम चाहिए। ओके तो मैं ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं खुद ही सीखूं, बेटर हूँ किस पे डिपेंड होने से बेटर मैं खुद ही करूँ, खुद का करूँ। ओके तो क्या आप सेल कर रहे हैं आप ऑनलाइन? देयर आर मेनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स व्हिच आई सेल। ओके तो आपने वेबसाइट कहाँ पे डेवलप किया? शॉपिफाई स्टोर मेरे घर के बाजू में, नॉट शॉपिफाई, ज़ेन कॉमर्स करके। ओके ज़ेन ओके तो आप इसमें मतलब एक परफॉर्मेंस मार्केटिंग आप सीखना चाहते हो ताकि आप ऑनलाइन प्रोडक्ट आप अपने सेल कर सको। ज़्यादा सेल करता हूँ। मोस्ट ऑफ पेड एडवर्टाइजमेंट whatever it is, right? And the main goal of selling a product is like बस वो सेल होना चाहिए, कहाँ से भी हो, किधर से भी हो। ओके एग्जैक्टली यस समीर आपका भी इंट्रोडक्शन सबको पता चलता है। Myself Samir Ansari from Kalamboli. Okay. And I did my graduation from St. Wilfred's College in computer science. Okay. And I'm doing digital marketing because I like creativity and मतलब क्रिएटिविटी वगैरह सीखना है, बट गोल क्या है इसमें आपका? मतलब करियर ग्रोथ करना है या सेल्फ अपडेट मतलब सेल्फ अपग्रेड करना है, brand build करना है। ओके कोई ना कोई ब्रांड। यस मयूर जी के बारे में भी सेम, वो भी रियल एस्टेट से बिलोंग करते हैं, उनको भी रियल एस्टेट का बिजनेस स्केल करना है। ओके यस सुजाता। Yes, sir. Yes, can you please introduce yourself? Sir, I'm Sujata. I'm residing in Belapur. I'm currently working with Career Launcher as a center head. And I want to learn digital marketing because I want to upskill myself and I want to generate a second source of income Okay. by doing freelancing. Okay. So I want to learn digital marketing. Okay, nice. Saqib. Yes, sir. Yes, Saqib. आपका इंट्रोडक्शन बताइए और आपका गोल क्या है वो बताइए। Sir, my name is Saqib Sheikh. I live in Mumra. Okay. And I want to build my career in digital marketing as I want to learn new things and new skills like freelancing and e-commerce, etc. Okay. So I want to build my career in this. Okay, साकिब का मुझे ओवरऑल काफी हद तक मुझे भी पता है इसे ई-कॉमर्स का प्लेटफॉर्म पूरा अच्छे से बिल्ड करना है जिससे आपका रिक्वायरमेंट है। ओके तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ अगर देखा जाएगा तो मेजॉरिटी जो है वो 60% करियर को स्केल करने के लिए, 20% ई-कॉमर्स बिजनेस को एक स्केलिंग लेवल पे लेके आने के लिए और 20% रियल एस्टेट के लिए। तो आपके जो गोल है उस गोल के डायरेक्शन के हिसाब से हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे एग्जांपल्स और प्रैक्टिकल थिंग्स को लेके आगे बढ़ने वाले हैं, राइट? ओके अभी स्टार्ट करते हैं डिजिटल मार्केटिंग से, बट मुझे इससे पहले आप लोगों से ये पूछना है कि आप लोग अभी डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए आए हो, राइट? बट डिजिटल मार्केटिंग से पहले भी कोई मार्केटिंग होती थी, वो मार्केटिंग पता है आपको क्या है? अभी राइट नो डिमांडेड है डिजिटल मार्केटिंग, बट उससे पहले भी तो कोई मार्केटिंग होती थी, ऑफलाइन मार्केटिंग होती है, ऑफलाइन मार्केटिंग, राइट? तो वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग जिसे कहते हैं। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग आपको पता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कौन कौन से मतलब किन किन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके मार्केटिंग होती थी? न्यूज़पेपर, बैनर्स, राइट। ओके तो मैं भी आपको थोड़ा सा इसका आपको वैल्यू पता होना पहले बहुत जरूरी है कि डिजिटल मार्केटिंग का वैल्यू क्या है।
तो डिजिटल मार्केटिंग का वैल्यू बताने के लिए इसके पीछे हमें जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो थी उसको पहले थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तभी आप जाके डिजिटल मार्केटिंग का वैल्यू समझ पाएंगे। तो मुझे आपको सबसे पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एंड ओके, सबको बोर्ड दिख रहा है ना ऑनलाइन? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके ओके, तो डिजिटल मार्केटिंग से पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग थी, राइट? Yes. अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जैसे न्यूज़पेपर से पहले एडवर्टाइजमेंट होता था, है ना? और किन तरीकों से? बैनर एड जैसा बताया आपने, Billboard advertising. ओके, बिलबोर्ड जिसे कहते हैं होर्डिंग, ओके, पैम्पलेट होता था, और इसके अलावा ओके, स्टैंडी वगैरह तो समझ लीजिए बैनर वगैरह में सारे आ जाएंगे। होर्डिंग्स होते थे, पैम्पलेट्स होते थे, एंड अगर आप देखें तो रेडियो पे एडवर्टाइजमेंट होते थे, राइट? एंड एज वेल एज टीवी पे एडवर्टाइजमेंट होते थे, टेलीविजन, एंड उसके बाद में मैगजीन, एंड उसके अलावा सो ऑन, अगर देखा जाएगा तो इससे बहुत सारे। अच्छा, क्या लगता है सबसे पहला वाला पार्ट पकड़ते हैं, न्यूज़पेपर। क्या लगता है न्यूज़पेपर पे अगर आप ऐड दे रहे हो, तो एग्जांपल मान के चलते, टीओआई, टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया में अगर आपने एडवर्टाइजमेंट दिया तो ऑल ओवर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होगा वो, ओके, ऑल ओवर जहां पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सब पढ़ेंगे उसे, ओके। मान के चलते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया पे तनिष्क ने एक एडवर्टाइजमेंट दिया, तनिष्क कंपनी ने एक एडवर्टाइजमेंट दिया कि 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ फॉर अपकमिंग एनिवर्सरी जिसकी भी उनके लिए। तो क्या लगता है अभी जितने सारे लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ा है, तो मेजोरिटी लोगों ने किसने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर, मेंस ने या फीमेल्स ने? न्यूज़पेपर मेजोरिटी किसने पढ़ा होगा जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, मेंस। कितना परसेंट मेंस ने पढ़ा होगा? मेंस ने कितना परसेंट पढ़ा होगा? 70%, और 30% वुमेन्स ने। क्या लगता है ये एडवर्टाइजमेंट राइट ऑडियंस तक पहुंचा? नहीं पहुंचा ना? रेडियो की बात करते हैं, अभी रेडियो में आपको पता है कि बहुत सारे भी, जैसे कि स्पॉटिफाई आ गया, जियो सावन आ गया है ना, तो इस पे लोग ज्यादातर गाना वगैरह सब सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं गाने के बीच में बहुत सारे ऑडियो में ऐड आने लगते हैं। तो ऐड आपको ऑडियो में अच्छा लगता है या वीडियो में अच्छा लगता है? ओके, चलो वीडियो में भी दिखता है, लेकिन वीडियो ऐड में अच्छा लगता है क्या? अगर आपके इंटरेस्ट का हो तो अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आपके इंटरेस्ट का नहीं है तो वो ऐड भी आपको बोरिंग लगेगा। तो क्या लग रहा है वहां पे भी राइट मार्केटिंग हो रही है? नहीं हो रही है? अगर आपको कोई गाना सुनना है जिससे आपका थोड़ा सा अप एंड मूड थोड़ा सा अच्छा हो जाए, और वहाँ पे कोई ऐसा गाना ला रहा है जिससे आपका मूड और खराब हो जाए, तो होगा क्या? वो एड्स का और बोरिंग हो जाओगे और प्लेटफॉर्म को मतलब डिनाई कर दोगे। ओके, इसके बाद में टीवी वगैरह पे जब आप ऐड देखते हो, टीवी वगैरह पे ऐड तो बहुत सारे आते हैं, अब आपके पसंद भी तो नहीं होते ना ऐड, वो तो रैंडमली दिखाते जाते हैं। अच्छा, आपको पता है आईपीएल आपने सबने देखा होगा, जियो हॉटस्टार पे आईपीएल स्टार्ट होता है, तो आईपीएल के बीच में जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट आप देखना चाहते हो? नहीं, लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट वहाँ पे जानबूझ के दिखाया जा रहा है ताकि ब्रांड बिल्ड हो सके, लेकिन देखना कोई चाहता ही नहीं है। हमें अपने पसंद का कोई ऐड होगा जिसमें हमारा इंटरेस्ट है तो हम देख सकते हैं। एंड देन उसके बाद में होर्डिंग साइड आपको पता होगा, होर्डिंग एड जैसे कि बड़े बड़े जो भी सिग्नल्स होते हैं, या फिर अगर आप ब्रिजेस देखते हो तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो होर्डिंग्स के अंदर जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, राइट, रियल एस्टेट के होते हैं और कार इंडस्ट्रीज एंड बैंक, इनके वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट ज्यादा देखने मिलता है, बिकॉज वो बहुत हाई कॉस्टिंग का ऐड होता है और उसके कुछ एडवांस में प्रोसीजर करने पड़ते हैं, वो 1 या 2 दिन के लिए आपको नहीं मिलता, मिनिमम 7 डेज के लिए अप्लाई करना पड़ता है, और बैकएंड में उसके लिए प्री ऑर्डर बहुत सारे बुक होते हैं कंपनी के, तो वो आपको इतने आसानी से मिलते नहीं है। तो होता क्या है, ये ट्रेडिशनल ऐड जितने भी है, इन सारे एडवर्टाइजमेंट से ना कस्टमर राइट नहीं मिल पाते, तो इसमें होता क्या है, आपका पैसा काफी हद तक बहुत एक्स्ट्रा जाता है और राइट कस्टमर तक नहीं पहुंच पाता। तो हो रहा है क्या, पैसा तो जा रहा है लेकिन बिजनेस नहीं आ रहा है।
तो हमें तो बिजनेस चाहिए ना, पेट प्रमोशन करने के लिए तो कोई भी कंपनी तैयार है, लेकिन अगर बिजनेस आएगा तो और ज्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे छोटा एग्जांपल देता हूँ जो यहाँ पे बहुत कम कॉस्टिंग है। न्यूज़पेपर में भी अगर आप ऐड देने जाओगे तो मिनिमम यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि 3 डेज तक आपको ऐड देना पड़ेगा। 3 डेज अगर आप नहीं दोगे तो आपका ऐड नहीं होगा। एंड देन उसके बाद में बैनर एड्स। बैनर एड्स आपको पता है आज हर एक रोड के कोने पे बैनर एड्स का डिमांड हो गया। और बैनर एड अगर देखा जाए तो आज के टाइम पे पॉलिटिशियंस के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। एंड देन उसके बाद में होर्डिंग, इसका भी कॉस्टिंग काफी हद तक ज्यादा है। एंड रेडियो का भी ज्यादा है, टेलीविजन, मैगजीन, ये सबका ज्यादा है। पैम्पलेट्स का मैं आपको सबसे छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। पैम्पलेट्स तो हर कोई बनाता है ना, एक छोटा सा लोकल बिजनेस भी अगर स्टार्ट हो रहा है तो वो भी वो पैम्पलेट्स बना रहा है ताकि वो नियर बाय लोकेशन में डिस्ट्रीब्यूट कर सके और लोग अवेयर हो जाए कि हमने यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो एग्जांपल मान के चलिए आपने एक नया सलून ओपन किया, राइट, और ये जो सलून है ना ये यूनिसेक्स सलून है, यहाँ पे मतलब मेन वुमेन दोनों के लिए। अब आपने ये सलून ओपन किया है मान के चलते वाशी में। वाशी में जो आपने सलून ओपन किया है ये सेक्टर 17 में। अब सेक्टर 17 में आप चाहते हो कि नियर इसके जो रेडिएशन है, सेक्टर 17 जो लोकेशन है यहाँ पे आपकी शॉप है, आप चाहते हो कि 2 किलोमीटर तक यहाँ पे भी आपका सब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। क्या डिस्ट्रीब्यूट हो? पैम्पलेट्स, जिससे मेरी नियर ऑडियंस थोड़ी सी अवेयर हो जाए कि हमने यहाँ पे अपना एक सलून ओपन किया। अब मुझे बताना एक पैम्पलेट डिजाइन करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है। मान के चलो आपका एक बिजनेस है तो अगर आप एक पैम्पलेट बना रहे हो तो सबसे पहले क्या स्टेप लेना पड़ेगा? डिजाइन। डिजाइन बेसिकली कितने रुपए में बन जाएगी? डिजाइनिंग का कॉस्ट कितना लग सकता है आपके अंदर? जो डिजाइन अगर आपको बना के देगा कितना रुपया ले सकता है? 200-300। लेकिन एक पैम्पलेट डिजाइन याद रखिए, पैम्पलेट डिजाइन के अंदर मैटर कंटेंट बहुत सारे होते हैं, राइट। तो इसमें आपको आपकी पूरी सर्विस को डिस्क्राइब करना पड़ता है, आपके ओवरऑल जितने भी प्रोडक्ट है उन सबके बारे में उसकी प्राइस भी बतानी पड़ती है, सब कुछ। तो क्या लगता है कितने में बन सकता है? एक अंदाजा बताइए। पैम्पलेट सर की डिजाइन नहीं, डिजाइन पैम्पलेट की पूरी डिजाइन। एग्जांपल मेरे पास एक डिजाइन थी, आई थिंक शायद मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट। कोई तो डिजाइन देता है वो फ्री में ही करते हैं। मैं वही सोच रही थी फ्री में ही होता है, क्योंकि मैंने भी बनवाया था रिसेंटली तो उसमें डिजाइन का चार्जेस नहीं। ये सेम वैसे जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया। अभी मेरे पास यहाँ पे उडुपी एक रेस्टोरेंट ओपन हुआ है तो उसने ये पैम्पलेट बनवाया। तो ये पैम्पलेट आगे फ्रंट देखिए और इसका बैक देखिए, तो सेम उसने वही किया ना पैम्पलेट मार्केटिंग। ओके, अब मुझे बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिजाइन हुआ है मिनिमम कॉस्टिंग कितना लगा होगा? अगर 1000 बनाए रहेंगे तो 5000 में आएगा। खाली मैं डिजाइन की बात कर रहा हूँ, अभी इस पे आने का बाकी है। जनरली कैसे मैं जब बनाने गई थी तो फ्री में ही करके देता था, बिकॉज सामने फिर उसको क्वांटिटी चाहिए था तो डिजाइन फ्री में हो जाता था। ओके, पर वो क्वांटिटी बोलता था कि इतना चाहिए। ओके, ऐसा हुआ है। ओके, मेरे पास फाइल देती है ना तो ओके। अभी एग्जांपल अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो फर्स्ट टाइम तो शायद काफी लोग ऑफर देंगे क्योंकि आप उनसे प्रिंट कराओगे, ये सब कराओगे, लेकिन वहाँ पे डिजाइन आपको आपके हिसाब से नहीं मिली तो ठीक है, आपने उनका पैम्पलेट डिसाइड कर दिया कि उनके टेम्पलेट से आपने कर दिया, लेकिन वो टेम्पलेट में आपको मजा नहीं आ रहा। तो अगर एक एवरेज अगर आप देखो, एक डिजाइन अगर आपको बनाना है अट्रैक्टिव ताकि कस्टमर अगर उसको देखे तो देख के एटलीस्ट पढ़ना भी चाहिए। तो मैं आपको जो मैं मिनिमम कॉस्ट जो बता रहा हूँ, मिनिमम आप यहाँ पे 300 to 500 के बीच में पकड़नी चाहिए, क्योंकि कोई भी ग्राफिक डिजाइनर अगर आपका डिजाइन बना के देगा तो वो फ्री में बना के अगर दे रहा है तो ये उसका मतलब है कि कस्टमर को एक्वायर करने की टेक्निक है। वो फ्री आपको इसलिए दे रहा ताकि आप बैकएंड में उससे बहुत सारे बल्क में प्रिंट कराओगे, लेकिन कुछ सारे मतलब मेजोरिटी ऐसा नहीं करते, जिनका बिजनेस स्टेबल होता है वो इसका चार्ज देते ही है। तो आप लोग लकीली हो कि मतलब वो अगर आपको एक्वायर करने के लिए फ्री में दे रहे तो, नहीं तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऐसे पैम्पलेट का डिजाइन करने का एवरेज कॉस्टिंग 500 रुपीज आप पकड़ के चलिए, क्योंकि उसके नीचे कोई लेगा नहीं। तो यहाँ पे मैं एवरेज कॉस्टिंग यहाँ पे 500 रुपीज मेंशन करता हूँ। देन डिजाइन आपका रेडी हो गया, डिजाइन रेडी होने के बाद अब इसका क्या लगेगा? प्रिंट। तो क्या लगता है पूरे वाशी सेक्टर 17 से 2 किलोमीटर में कितने घर हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं। वो मिनिमम कितने प्रिंट करवाएंगे? 20,000।
ओके, तो यहाँ पे 20,000 प्रिंट पकड़ के चलते हैं, और 20,000 प्रिंट का कितना पैसा ले सकते हो? Must 3 rupees, 2.5 rupees का रहेगा, 2.5 to 3. 2.5 to 3. तो यहाँ पे क्या कर दिया उसने, प्रिंटिंग का पैसा नहीं लिया, लेकिन प्रिंटिंग के इसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पैसा आपका डिजाइन में लगेगा। तो ऐसे टाइप के प्रिंट होने के लिए मैक्स टू मैक्स 1.5 रुपए लगेंगे या 1 रुपए 40 पैसे लगेंगे। लेकिन इसमें क्या करते हैं, वो डिजाइन फ्री में करके यहाँ पे बहुत सा उन्होंने चार्ज ले लिया। देखो वैसे कोई गलत नहीं है, उनका मार्केटिंग है, वो उनका बिजनेस है। तो बिजनेस के लिए इंसान अपना प्रॉफिट तो रखेगा, तो वो अपनी जगह पे राइट है। बट ये है कि आपको अगर उस चीज के बारे में नॉलेज होती तो आप उससे अच्छे से बार्गेनिंग कर सकते थे, और बार्गेनिंग कस्टमर का राइट है, वो हमारा राइट है, हम उससे कितने भी हद तक बार्गेनिंग कर सकते हैं। तो दोनों अपनी जगह पे राइट है। तो यहाँ पे क्या होता है, एग्जाम्पल मान के चलिए 20,000 है, तो 20,000 हम लोग समझते हैं कि 1 रुपए का एक प्रिंट है, तो 20,000 प्रिंट 20,000 रुपीज हो गया। तो यहाँ पे हम लोग 20,000 रुपीज हम लोग यहाँ पे पकड़ के चलते हैं, ये सारे लोकेशन के अंदर से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। एंड देन उसके बाद में प्रिंट तो करवा दिया आपने, तो वो क्या डिस्ट्रीब्यूट ऑटोमेटिक हो जाएगा? अब 20,000 प्रिंट, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मेन पावर लगेगा। तो क्या लगता है कितने मेन पावर लग सकते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? न्यूज़पेपर वाला को पकड़ लेने का, न्यूज़पेपर में डाल देते। ओके, और न्यूज़पेपर वाला तो वो तो डाल देगा, लेकिन वो सोसाइटी में भी वो बांट ही देता है सर। राइट, वो बांट देगा, पकड़ लेकिन लिया तो न्यूज़पेपर में जाता है, साथ साथ में सोसाइटी में भी चला जाता है। यस, तो वो पर्सन जो न्यूज़पेपर के अंदर जो डाल के देगा वो कुछ तो चार्ज देगा ना। हाँ, क्या वो लगता है वो charge। कितना देगा? और 1% 20,000 लोगों तक पहुंच सकता है नहीं। एक दिन में? फिर मिनिमम कितने कितने लोग लगेंगे? मान के चलते हैं हम लोगों ने यहाँ पे 4 लोगों को हायर किया, एक पर्सन को हमने डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसको हमने 500 रुपीज दिया, और से बोला कि 5,000 आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो 4 पर्सन हमें लगे, 4 मैन पावर, तो 4 मैन पावर को हमने 2,000 रुपीज दिया, राइट। तो यहाँ पे अभी हम लोग इसे पकड़ते हैं 2K, और 2K लोगों मतलब 2,000 रुपये हमने स्पेंड करके 4 लोगों को एक्वायर किया, और वो हमारे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सारे पैम्पलेट्स को। तो ओवरऑल यहाँ पे एक्सपेंसेस कितना हो गया? 22,500। ओके, अब मुझे ये बताना, आपने एक पैम्पलेट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 22,500 रुपीज आपने क्या किया, स्पेंड किया, और कितने लोगों तक पहुंचने के लिए? 20,000। सिर्फ 20,000 लोगों तक, सिर्फ 20 के ऑडियंस, वो भी कौन से रेडिएशन में? जो 2 किलोमीटर के रेडिएशन में आते हैं, ओनली 2 km। और आपका जब ये डिस्ट्रीब्यूट हो भी जाएगा, ठीक है, काफी हद तक लोगों को पता चल जाएगा, जैसे मुझे पता था उडीपी, तो उडीपी से हमने बहुत बार मंगाया, कभी भूख लगती तो मंगा लेते। तो अब यहाँ पे मान के चलिए 20,000 लोगों तक जब आपका ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्या लगता है कितने कस्टमर आएंगे सलोन में? एक एवरेज रेशो 10%, तो 20,000 का 10% कितना हो जाता है इसका? 2,000। ओके, 2,000 कस्टमर आएंगे नहीं 20,000 तक पहुंचने से। 2,000 कस्टमर का ये बोल सकते हैं कि इंक्वायरी आ सकती है, लेकिन 2,000 कस्टमर आएंगे, और 2,000 में से भी अगर आप इसमें पकड़ के चलो ना, तो इसमें आप 1% का कन्वर्जन मतलब मान के चलिए, और 1% का कन्वर्जन मतलब कितना हो गया इसका? वो तो 10% हो गया। 2,000 का 1% अगर आप पकड़ोगे 1% तो 10% हो जाएगा। तो 20 कस्टमर मान के चलिए, और ऐसा नहीं कि 1% ही हो सकता है, ये आपके मतलब 100 तक भी हो सकते हैं, बट मार्केटिंग तो एक ही बार होगी ना, उसके बाद फिर कस्टमर को बुलाना है, फिर इतना खर्चा करो, फिर इतने % के कस्टमर आएंगे। ठीक है, चलो अगर ये 100 कस्टमर, अगर उनको 20 से 100 कस्टमर के बीच में अगर कस्टमर मिल भी जाते तो उनका बिजनेस रेवेन्यू मैक्स टू मैक्स मैं आपको बता रहा हूँ कि एक 80,000 टू 1 लाख रुपीज तक कवर कर देगा, क्योंकि उनको स्टार्टिंग में ऑफर रहेगा ना, तो बहुत सारे ऑफर उनको कम रेट में देने पड़ेंगे, डिस्काउंटेड में देने पड़ेंगे, तो वो मोर देन मे बी तो अपना 22,000 रुपीज स्पेंड करके वो एक 80,000 टू 1 लाख रुपीज का बिजनेस जनरेट कर देंगे, और उसमें से फिर उनका रेंट है, स्टाफ की सैलरी है, ये सब देने के बाद हाथ में कुछ बचने वाला था खास है नहीं। बट अगर इतना ही रुपया अगर वो डिजिटल मार्केटिंग के इसमें प्रमोट करते
तो इसके 10% इन्वेस्टमेंट में ही वो इतना बिजनेस कर लेते। अब मैं आपको उसका वैल्यू बता रहा हूँ। एग्जाम्पल, अगर उन्होंने इसे फेसबुक पे प्रमोट किया होता, इंस्टाग्राम पे प्रमोट किया होता, ये दोनों पे किया होता, अब इसके लिए खर्चा देखो क्या है। डिजाइनिंग के लिए मान के चलो वही 500 रुपए, राइट। अब यहाँ पे प्रिंट करने की जरूरत पड़ेगी, प्रिंट का पैसा बच गया पूरा 20 के, पूरा सेव हो गया आपका। ओके, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत पड़ेगी, तो डिस्ट्रीब्यूट का भी पूरा 2 के आपका यहाँ पे सेव हो गया। यहाँ पे जरूरत पड़ेगी तो सिर्फ एड्स में, यहाँ पे सिर्फ डिजाइन लगेगा और एड्स लगेगा। हम एड्स के अंदर है ना, इसका 22,500 रुपीज जो लगा था, हम इसका सिर्फ 10% लगा, तो 10% कितना हो जाएगा 2250। सिर्फ अभी हम इतना स्पेंड करेंगे, जो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि कितने लोगों तक पहुंचेगा। अब यहाँ पे देखना, ये सेक्टर 17 है ये पॉइंट में। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग 2 किलोमीटर के अंदर है ना ये ऐड रन करेंगे। 2 किलोमीटर के अंदर हम लोग ऐड रन करेंगे और हमारी ऑडियंस सबसे पहले फिल्टर हो जाएगी कि हमारी ऑडियंस एक राइट लोकेशन में सबसे पहले हमारा ऐड चलेगा। राइट लोकेशन मतलब मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। जिस तरीके से उसने पैम्पलेट को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो राइट लोकेशन में डिस्ट्रीब्यूट किया ना उसने। ओके, अब मुझे ये बताइए, राइट लोकेशन में उसने डिस्ट्रीब्यूट तो किया, पर क्या हर किसी को उसी टाइम पे केराटिन, स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग, कलर, हाईलाइट उस टाइम पे कराना था? नहीं। ओके, हमारा ऐड भी इसी लोकेशन में चलेगा, इन्हीं लोगों को दिखने वाला है, बट इंटरेस्टेड कस्टमर को दिखने वाला है। राइट ऑडियंस तो है, परफेक्ट ऑडियंस है, बट इंटरेस्टेड ऑडियंस नहीं है। तो इन्हीं लोकेशन में आप इंटरेस्टेड ऑडियंस तक पहुंच सकते हो, उसको मैंने कहा यहाँ पे राइट ऑडियंस। एज वेल एज राइट ऑडियंस के साथ उनका यहाँ पे ना जो बिहेवियर है ना, उनके बिहेवियर के बेस से भी आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो कि ऐसी कितनी ऑडियंस यहाँ पे रहती है जो ब्यूटी सैलून के इसमें वो रेगुलर वो सर्विसेज ले रहे हैं। देखो, एक सर्विस में इंटरेस्ट होना एक अलग चीज है और सर्विस को लेना एक अलग चीज है। एग्जांपल, मर्सिडीज कार पसंद है, अच्छी बात है, आपका मर्सिडीज कार में इंटरेस्ट है, बट आप कैपेबल हो लेने के लिए, वो भी तो मैटर करता है ना। तो मर्सिडीज कार वाला जब ऐड रन करता है, तो जितने लोगों को मर्सिडीज में इंटरेस्ट है उन्हें ऐड नहीं दिखाता है, जिन्हें मर्सिडीज में इंटरेस्ट है और वो कैपेबल भी है उन लोगों को ऐड दिखाता है, ताकि वो एक डेमो बुक करें, टेस्ट ड्राइव करें। आपको कभी टेस्ट ड्राइव का ऐड, मतलब अगर आपका कैपेसिटी है, आपका इंटरेस्ट है, तो आपको टेस्ट ड्राइव के लिए आपको ऐड दिखेगा। बट अगर आपका कैपेसिटी नहीं है, तो आपको एक ब्रांडिंग के लिए वो ऐड दिखाएगा बस, ना कि टेस्ट ड्राइव के लिए। तो यहाँ पे कस्टमर का बिहेवियर और उसका इंटरेस्ट दोनों अलग अलग होता है, उसे समझना जरूरी है। एग्जाम्पल, आपको फ्लैट लेना है, फ्लैट पसंद है, नया घर लेना है, लेकिन नया घर लेने के लिए कैपेसिटी तो होना चाहिए, कैपेबल, तो वो नहीं है। आपको प्रोडक्ट बेचना है ऑनलाइन, ऑनलाइन प्रोडक्ट अगर आपको बेचना है, तो उस टाइप के प्रोडक्ट को खरीदने वाली ऑडियंस है, लेकिन उनका बिहेवियर तो पता होना चाहिए। तो वो जब पता चलेगा तभी तो आप राइट ऑडियंस तक पहुंच पाओगे। तो यहाँ पे क्या है, आप राइट ऑडियंस तक पहुंचोगे, आपका कस्टमर का बिहेवियर यहाँ पे एनालाइज करके उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंगली उनको ऐड दिखा सकते हो। एज वेल एज यहाँ पे आप डेटा भी मेजर कर सकते हो कि आपके एड्स से जो ऑडियंस आई है उसका डेटा कितना है। एग्जांपल, पैम्पलेट आपने बांट दिया, कोई भी फोन आया, तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकोगे कि ये फोन 100% आपके पैम्पलेट से आया है? नहीं ना। लेकिन यहाँ से जो आपके एड्स से आएगा, तो उसका एक्यूरेट आपको डेटा मिलेगा, जिसको आप मेजर कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, और वो आपको ये बताएगा कि ये डेटा, ये जो भी इंक्वायरीज है, इसी एड से आया है। तो आपको एग्जैक्टली ये पता चलेगा इतने अमाउंट से आपको कितनी इंक्वायरी आई, जिसे कहते हैं डेटा मेजरमेंट। यहाँ पे किसी को बेसिक नॉलेज है फेसबुक का या गूगल का, समीर को छोड़ के? आसिफ, साकिब है आपको? आइडिया तो नहीं, लेकिन लीड जनरेट होती है मालूम। ओके, तो एग्जांपल, अभी मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। रोनाल्डो अगर इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालता है ना, तो रोनाल्डो की पोस्ट में ना विद इन 24 आवर्स के अंदर
विद इन 24 आवर्स के अंदर उसके पोस्ट पे ना उसको 1 CR के नियर बाय उसे लाइक मिल जाता है। कभी देखा आपने, नोटिस किया रोनाल्डो के पोस्ट पे? अगर वो 24 घंटे में अगर वो एक पोस्ट करता है तो विद इन 24 आवर्स के अंदर उसके पोस्ट पे 1 CR के आसपास उसको सिर्फ लाइक्स मिल जाते हैं। तो आप सोच के देखिए, अगर 1 करोड़ उसे 24 घंटे में लाइक मिल रहे हैं तो रीच कितनी होगी, कितनी हो सकती है रीच? मोर देन हो सकती है 15 CR to 20 CR तक हो सकती है। मतलब 20 करोड़ लोगों ने देखा है तब जाके 1 करोड़ लोगों ने उसके पोस्ट को लाइक किया। आपको पता है ये जितने भी जो सेलिब्रिटीज है ना, ये टॉप क्लास वाले, इनको इंस्टाग्राम मतलब मेटा इनको पे करता है पोस्ट डालने के लिए। मोनेटाइजेशन इनका ऑन है, लेकिन मोनेटाइजेशन से उतना कमाते नहीं है। इनको इंस्टाग्राम पे करता है पोस्ट डालने के लिए। वो इसके लिए क्योंकि जब ये पोस्ट डालते हैं ना तो ट्रैफिक इंक्रीज होता है, और जब ट्रैफिक बढ़ता है ना तो वही ट्रैफिक में अदर कंपनीज के, आपके मेरे सब कंपनीज के एडवर्टाइजमेंट वहां पे तब चलते थे, और जब ऐड चलते हैं ना अपने, तब उस ऐड में से हमें रेवेन्यू आता है। सो राइट, चाहे वो किसी भी फील्ड का ऐड हो, इनको पे इसलिए किया जाता है ताकि इंस्टाग्राम पे ट्रैफिक आ जाए। तो अगर देखा जाएगा इंडिया में विराट कोहली है जिसका इंस्टाग्राम पे फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है। तो विराट कोहली, अगर आपको पता हो, लास्ट 1.5 साल 2 साल पहले उसने अल्कलाइन वाटर को बहुत प्रमोट किया था, ब्लैक वाटर, जिसके बाद से मेजोरिटी ऑफ इंडियन ऑडियंस को पता चला कि ब्लैक टाइप का भी कोई वाटर होता है। मतलब मोस्ट ऑफ लोगों को पता ही था, जिनको पता है मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिनको नहीं पता था तो वो विराट कोहली से पता चला। इसका मतलब वो ब्रांड स्प्रेड होने के लिए ज्यादा समय नहीं लगा ना, जब विराट कोहली ने बताया तो ये सारे ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए ना कंपनी तो उसे पे कर रही है, लेकिन एज वेल एज जब वो पोस्ट डालते हैं तो इंस्टाग्राम भी उन्हें पे करता है। 2 कंडीशन है इंस्टाग्राम से पेमेंट करने की, एक तो मोनेटाइजेशन की बेस पे आपको पेमेंट आती है, और मेटा जब आपसे अप्रोच करता है जिस दिन ट्रैफिक नहीं होता है। कभी आपने नोटिस किया डीमार्ट में आपको मंडे ट्यूसडे की ट्रैफिक नहीं मिलेगी, लेकिन वीकेंड में आपको बहुत ट्रैफिक मिलेगी। क्यों? क्योंकि पता है वीकेंड में काफी लोगों की हॉलीडेज होती है। तो वीकडेज में जब आपकी ट्रैफिक नहीं आ रही है तो कुछ ना कुछ डीमार्ट ऑफर लगाएगा, भाई ये ऑफर लगा है और ये मंडे टू फ्राइडे तक ही है, लेकिन सैटरडे संडे का उसका कुछ और ही प्लान है। तो उसी तरीके से ये ऑनलाइन मार्केटिंग का भी एल्गोरिदम एक होता है, ये बड़े बड़े क्रिएटर्स को खाली पोस्टिंग करने के लिए पे करते हैं। तो अभी हमारे पॉइंट पे आते हैं, जहाँ पे मेरा पॉइंट ये था आपको बताने के लिए कि अगर आप 2 किलोमीटर में राइट ऑडियंस उनके बिहेवियर को टारगेट करके अगर ऐड दिखाते हो तो यहाँ से आने वाला जो डेटा है वो आप डेटा ट्रैक कर सकते हो कि इंक्वायरी कितनी आई है, प्लस यहाँ पे आपको ROI भी देखने मिलता है। ROI का मतलब क्या होता है? रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब आपने राइट, तो आपने जितना भी एड में स्पेंड किया है उसका इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न में कितना आएगा, ROI। तो यहाँ पे ये डेटा भी आपको कैलकुलेट करने मिलता है। अब मुझे बताना, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग थी, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप इतनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए कितना रुपया पे कर रहे थे? 22,500 रुपीज। और यही यहाँ पे अगर आप जब डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो तो राइट ऑडियंस तक बिहेवियर डेटा ROI तो मिलेगा, प्लस वहां आप 20,000 तक पहुंच रहे थे या अनलिमिटेड तक पहुंच सकते हो। अनलिमिटेड मतलब क्या लगता है, यहाँ सेक्टर 17 से इस डायरेक्शन में 2 किलोमीटर में कितने फेसबुक और इंस्टाग्राम यूजर हो सकते हैं? फिर इस डायरेक्शन में कितने यूज हो सकते हैं? अगर आप चारों डायरेक्शन में अगर आप देखते हो ये रेडिएशन में, तो टोटल अगर देखा जाए तो 8 किलोमीटर हो रहा है। इस 8 किलोमीटर में क्या लग रहा है कितनी ऑडियंस होगी जो फेसबुक या इंस्टाग्राम इस्तेमाल कर रहे हो? मेजोरिटी क्या 20,000 होगी? नहीं, उससे ज्यादा ही हो सकती है ना। तो इसमें कोई गारंटी नहीं है कि आपका ऐड सिर्फ 20,000 तक पहुंचेगा। यकीन मानिए, ये जो 2250 आप जो देख रहे हो ना, 2250 रुपए में कम से कम है ना, आप यहाँ पे मिनिमम 15,000 से लेके 80,000 लोगों तक यहाँ पे आपका ऐड पहुंच सकता है। कितने पैसे में? कितने पैसे में? सिर्फ इतने पैसे में 15,000 से लेके 80,000 के बीच में। अगर इसका एवरेज भी पकड़े आप, तो चलो एवरेज पकड़ते हैं हम लोग 40,000, फिर भी तो एक देखा जाएगा तो 2250 रुपए में आप 40,000 लोगों तक एक दिन में पहुंच रहे हो। दूसरे दिन फिर चलाओ, फिर 40,000 तक पहुंच सकते हो, तीसरे दिन फिर चलाओ। तो एक टाइम पे चलाने पे जो आपको जब रिजल्ट मिल रहा है, तो वही रिजल्ट आपको दोबारा चाहिए तो फिर से वापस से कैंपेन को पैसा देके वापस से चला दो। तो आप समझ रहे हो दोनों में डिफरेंट क्या है? दोनों में डिफरेंट ये है
ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में दोनों में डिफरेंट ये है कि यहाँ पे जो है ना, जो ऑडियंस लिमिटेशन है, यहाँ पे ऑडियंस लिमिटेशन है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, और यहाँ पे अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब ये नहीं है कि मतलब चलते ही रहेगा, वो एक स्पेसिफिक ऑडियंस है उस लोकेशन में, बट उस स्पेसिफिक लोकेशन में जिसने अगर आज उसने केराटिन ले लिया तो इसका ये मतलब नहीं कि उसको 6 महीने 5 महीने के बाद नहीं लगेगा। आज उससे स्मूथनिंग या हेयर स्पा ले लिया तो इसका ये मतलब नहीं कि वो जिंदगी में कभी नहीं लेगा, वो लेते रहेगा ना, उसकी स्पेसिफिक ड्यूरेशन है, उसके बाद तो उसे वो लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये कि यहाँ पे ऑडियंस का लिमिटेशन है, और यहाँ पे ऑडियंस का लिमिटेशन नहीं है। यहाँ पे आप खाली 2 किलोमीटर नहीं, आप 5 किलोमीटर भी बढ़ा दोगे ना तो भी आपकी राइट ऑडियंस टारगेट हो जाएगी। यहाँ पे दूसरा जो पार्ट है, पहला पार्ट तो ये कि ऑडियंस यहाँ पे लिमिटेशन है, और दूसरे पार्ट में ये कि ऑडियंस आपके इंटरेस्टेड ऑडियंस यहाँ पे जिससे आपको मिलेगी नहीं। यहाँ पे जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग से जो आप ऐड ऑन करोगे ना, यहाँ से आपकी इंटरेस्टेड ऑडियंस एकदम स्पेसिफाई नहीं होगी कि यही आपके इंटरेस्टेड ऑडियंस है, बट यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आप इंटरेस्ट और बिहेवियर के बेस पे आप राइट ऑडियंस तक पहुंच सकते हो। इंटरेस्ट और बिहेवियर के बेस पे यहाँ पे राइट ऑडियंस तक पहुंच सकते हो। अच्छा, एक बेसिक क्वेश्चन ये है, मेटा को कैसे पता चलता है आपका बिहेवियर? कुछ आइडिया है आपको? ओके, अच्छा, आप सर्च का, आप तो सर्च गूगल पे कर रहे हो, तो मेटा को तो नहीं पता चलेगा आपकी एक्टिविटी। अच्छा, ट्रैक करेगा, तो मेटा ट्रैक कैसे करेगा? आपने सब डेटा ओके, डेटा की बेस पे देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, शायद आपको पता हाँ है, सर, मैं डेटा आपको जाता है उनके पास। ओके, डेटा मैंने आपको क्लू देता हूँ, आप समझ जाओगे। आपको सबको पता है कि बाय डिफॉल्ट आपके मोबाइल में फेसबुक का एप्लीकेशन होता है, राइट? उसको आपसे कुछ परमिशन आपसे रिक्वायर मांगता है, कि जैसे कि आपके कॉल रिकॉर्डिंग, आपके लोकेशन की परमिशन, एंड उसके बाद में आपकी गैलरी की परमिशन, राइट? अगर आप चेक करोगे ना तो आपने वो परमिशन उसे एलोकेट किया है, तो उस परमिशन के बेस पे आपकी बिहेवियर को वो जज करता है। आप कॉल पे क्या बात कर रहे हो ना, कभी आपने नोटिस किया कॉल पे, कभी अभी आप कॉल पे बात करो कि आपको आईफोन 17 लेना है, अब आपको सेम का आईफोन 17 का ऐड दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आप फोन पे किसी से बात करके सर देखो, मतलब मैं आपको पर्सनली सजेस्ट कर रहा था, तो आपको पता चलेगा कि मेटा ने अपना मतलब मार्केटिंग कितना इनहांस किया है सिर्फ आपकी कॉल रिकॉर्डिंग को सुन के। कभी आप खाली मोबाइल की गैलरी में खाली आप फोटो खींच के रखो, कोई कार की गैलरी में आप कोई कार की फोटो खींच के रख लो, आप 24 आवर्स के अंदर उसी कार से रिलेटेड आपको एडवर्टाइजमेंट दिखने स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेटा ने आपकी गैलरी को रीड किया और उसमें दिखा कि आप कार देख रहे हो शायद। फिर इसके बाद में अगर आप किसी लोकेशन पे जा रहे हो तो वो लोकेशन से आपको जज करेगा कि आप फ्रिक्वेंटली आप ट्रैवल करते रहते हो, इसका मतलब ट्रैवल करने से रिलेटेड आपको ऐड दिखा सकता है, जैसे ट्रैवल बैग्स होते हैं ना, या फिर इसके बाद में और भी ट्रैवल्स के जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, या टूर्स एंड ट्रैवल्स के आपको ऐड दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपकी ट्रैवलिंग से उसने जज किया। तो वो क्या रहा है, आपके बिहेवियर को मेटा इस तरीके से जज करता है, और आप कहाँ पे कितना पैसा डाल रहे हो, कहाँ पे स्कैम कर रहे हो, किसको कितना पेमेंट बेच रहे हो, ये सारी एक्टिविटी से पता है कि आपका कैपेसिटी, पे कैपेसिटी कितना है। जितना कैपेसिटी आपका है और जितना आपको आपके बारे में नहीं पता है, उससे कहीं ज्यादा मेटा एंड गूगल को आपके बारे में पता है। अगर आप बड़ा पाव भी खा रहे हो तो भी मेटा को पता है, गूगल को भी पता है। अगर आप कोई लग्जरी प्रोडक्ट में अगर आप स्पेंड कर रहे हो तो वो गूगल को भी पता है, मेटा को भी पता है। सिर्फ उसका रीजन क्या है, एक ही है, जो आपने परमिशन उसे ग्रांट की, उस परमिशन के बेस पे मार्केटिंग इनहांस हुई है और राइट ऑडियंस तक पहुंच गई है। देखो, ये हम तो कर ही रहे हैं ना, हमारी नॉर्मल एक्टिविटीज है ना, और हमारी नॉर्मल एक्टिविटीज को और ये मेटा एंड गूगल ट्रैक करते हैं और उसके बेस पे हमें मार्केटिंग करते हैं। तो गलत तो वो भी नहीं है, गलत हम भी नहीं है, हम तो अपनी डेली एक्टिविटी कर रहे हैं ना। और बाकी हमें पसंद है, स्मार्ट वॉच आपको पसंद है, तो स्मार्ट वॉच का आपको ऐड दिख रहा है तो क्या गलत है? थोड़ी ना आपको कोई अलग ऐड दिख रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर जब आप यूट्यूब पे जा रहे हो कोई वीडियो देखने के लिए और उस वीडियो से पहले कोई ऐसा ऐड आ रहा है जो आपको पसंद ही नहीं है, तो इस टाइप के एड्स को कहते हैं पुश मार्केटिंग। पुश मार्केटिंग, पुल मार्केटिंग में आपको आगे कवर करूंगा इसकी डेफिनेशन अच्छे से। पुश मार्केटिंग ऐसा होता है कि
कभी कभी आपको प्रोडक्ट दिखाना पड़ता है कस्टमर को। एक डायलॉग है ना, जब तक दिखाओगे नहीं तब तक दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं तो बिकेगा नहीं। तो पुश मार्केटिंग में क्या होता है, जानबूझ के आपको दिखाया जाता है जितना आपको इंटरेस्ट नहीं है। अभी मेजोरिटी कितने लोग यहाँ पे ब्लिंकिट से प्रोडक्ट मंगाते हैं? आप मंगाते हो, और जेप्टो से कितने लोग मंगाते हैं? तो अलग अलग है ना। लेकिन अभी सबको पता है, जिनको जो नहीं मंगाते उनको भी पता है ब्लिंकिट क्या है, क्योंकि आपने इसकी इतनी बार ऐड देखी है। जेप्टो की इतनी बार ऐड देख लेंगे तो आपको पता चल गया। लेकिन प्रोडक्ट मंगाने वाली ऑडियंस कम है, लेकिन ब्रांड तो सबके दिमाग में आ गया ना कि ये जेप्टो है, ये ब्लिंकिट है। तो ब्रांड बिल्ड करना भी एक अलग बात होती है, जो मैं आगे आपको कवर करूंगा। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में ऑडियंस आपकी लिमिटेशन है, यहाँ पे अनलिमिटेड है। यहाँ पे आप अपने कस्टमर का इंटरेस्ट स्पेसिफाई नहीं कर सकते हो, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में स्पेसिफाई कर सकते हो। यहाँ पे नॉन मेजरेबल डेटा है, यहाँ से आने वाला डेटा आप मेजर नहीं कर पाओगे कि आपको इसी बैनर एड से आपको कॉल आया, ये आप गारंटी नहीं बोल सकते। लेकिन यहाँ पे डेटा मेजरेबल है, राइट। और यहाँ पे कोड जो है हाई कॉस्टिंग एड्स है, और अगर यहाँ पे देखा तो एज कंपेयर टू इसके ये मिनिमलिस्टिक है। मिनिमलिस्ट एड स्पेंड एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो दोनों में आपको समझ में आ रहा है ना क्या डिफरेंट है। और यहाँ पे आपका आरओआई जो है ना इतना अच्छा नहीं देखने मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आरओआई आपको बहुत अच्छा देखने मिलेगा। इसके लिए हमने एड स्पेंड वाला जो वर्ड यूज किया है यहाँ पे। तो आपको डिफरेंस बिटवीन समझ में आ रहा है ट्रेडिशनल मार्केटिंग का और डिजिटल मार्केटिंग का क्या है। तो डिजिटल मार्केटिंग मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, बड़ी बड़ी कंपनीज है ना अपने मार्केटिंग को डिजिटली करने जा रही है, और मोस्ट ऑफ टाइम अगर आप देखोगे तो काफी कंपनीज के एड भी आपको इसी तरीके से दिखने आ रहे हैं। और आने वाले कल में भी आपको ज्यादा मतलब मोस्टली आपको ऐड है ना आपको ऐसे ही दिखने वाले, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे दिखने वाले। एंड अभी ट्रेडिशनल मार्केटिंग वाला पार्ट हमारा कवर हुआ है। अब हम लोग पार्ट बात करने जा रहे थे डीएम के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग, अभी मुझे बता सकता है कोई डिजिटल मार्केटिंग मतलब क्या, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है? आप अपने लैंग्वेज में बताइए, सबको पता है क्या है, बट मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से क्लेरिफाई करके बताता हूँ। अहमद बताइए क्या है? जब ऑनलाइन जब सर्च करके निकालते वो डिजिटल मार्केटिंग। ओके, क्यों? किसी भी ब्रांड को प्रमोट करना ऑनलाइन। ओके, यस आप जैसे कि अभी ऑफलाइन मार्केटिंग होता है, उसी का ऑनलाइन बिजनेस को राइट, मतलब सबका अपना अपना एक वे है। यस Whatever they said, same. यस टेल। कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, कॉस्ट इफेक्टिव, वाइडर रीच। ओके। ऑनलाइन सुजाता, साकिब, साकिब से मैं एक्सपेक्ट करेंगे, साकिब इसका यस सर। साकिब का आंसर सही है। जैसे ऑफलाइन मार्केटिंग होती है वैसे ही अपने प्रोडक्ट सर्विस और ब्रांड को ऑनलाइन मार्केटिंग करना और प्रमोशन करना। एक्चुअली बोथ आर साकिब ना, साकिब साकिब, तो दोनों के आंसर भी सेम हो। ओके यस सुजाता जी प्लीज। Yes, sir. So, जो marketing, hello, यस यस ऑडिबल। hello. यस हाँ, यस जो ऑडिबल। marketing online सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे होती है, लाइक एफबी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल पे, तो वो मार्केटिंग जो है वो डिजिटल मार्केटिंग। राइट, सही है। ओके मैं थोड़ा सा आप लोग को इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर देता हूँ। देखो मार्केटिंग मतलब आप लोगों को सबका आंसर 100% राइट है, बट इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, जिसको आप किसी को भी समझाओगे तो वो आसानी से समझ जाएगा। मार्केटिंग अब डिजिटली होगी, एकदम सिंपल। एग्जांपल, किसी भी कंपनी को अगर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है तो सबसे पहले दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, एक इंटरनेट और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म। इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म, इंटरनेट के जरिए आप डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हो, और उन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो भी कंपनी अपनी मार्केटिंग कर रही है इस बेसिकली इसी को डिजिटल मार्केटिंग कर रही है। अब इसको बताने के लिए मेरे पास आपके पास कुछ एग्जांपल्स है जिसके बारे में मैं आपको दिखा सकता हूँ।
डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक यूजर है जो इंटरनेट इस्तेमाल करता है। अब वो इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है तो क्या लग रहा है वो यूजर फेसबुक में इस्तेमाल कर रहा होगा। अच्छा, इसके अंदर भी थोड़ा सा डेमोग्राफी, ऑडियंस का डेमोग्राफी, जो मैं आपको सोशल मीडिया में आपको कल कवर करने वाला पार्ट। एग्जाम्पल, अगर फेसबुक पे अगर आप देखोगे तो उसकी ऑडियंस का डेमोग्राफिक थोड़ा अलग है। इंस्टाग्राम के ऑडियंस देखोगे तो ये ऑडियंस का डेमोग्राफिक थोड़ा अलग है। और स्नैपचैट देखते हो तो इनका डेमोग्राफिक अलग है। एंड लिंक्डइन अगर देखते हो तो लिंक्डइन का डेमोग्राफिक और डिफरेंट है। तो ये कुछ प्लेटफॉर्म्स है जिनके ऑडियंस की डेमोग्राफिक के हिसाब से वो ऑडियंस उस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होती है। तो आपको ये देखना है आपका जो प्रोडक्ट है वो इन चारों प्लेटफॉर्म पे कौन से ऑडियंस के लिए सूटेबल है, राइट। अब जो प्रोडक्ट 1 करोड़ रुपीस का है उसका ऐड आप स्नैपचैट पे तो नहीं चलाओगे ना, क्योंकि वहां के ऑडियंस का जो डेमोग्राफिक वो डिफरेंट है। हाँ, 1 करोड़ का जो प्रोडक्ट है उसका ऐड आप लिंक्डइन पे चला सकते हो बिकॉज दे आर कैपेबल। एंड अगर आपको कॉमन प्रोडक्ट बेचने हैं जैसे 5,000 रुपीज टू अप टू 1 लाख रुपीज, तो इस प्रोडक्ट को आप यहाँ पे मेटा पे प्रमोट कर सकते हो आसानी से, बिकॉज वहाँ पे कॉमन ऑडियंस होती है जो प्रोफेशनल भी है अनप्रोफेशनल भी है। तो यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट ज्यादा आसानी से बिक जाते हैं, बट उसका एक प्लेटफॉर्म का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, जो पार्ट हम लोग कल कवर करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो एक यूजर है वो इंटरनेट का इस्तेमाल तो करता है, और इंटरनेट कौन से प्लेटफॉर्म पे कर रहा है, कौन से प्लेटफॉर्म पे ज्यादा टाइम दे रहा है, जैसे इंस्टाग्राम पे ज्यादा टाइम दे रहा है या फेसबुक पे दे रहा है या स्नैपचैट पे या लिंक्डइन पे। इन प्लेटफॉर्म पे आपके डेमोग्राफिक के हिसाब से जो भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करती है, इसी को शॉर्टकट में डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। बट ये समझो कि पहले डिजिटल मार्केटिंग जो होती थी ना ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, उसमें एग्जीक्यूटिव होता था। एग्जाम्पल मेडिकल में एमआर होता है कंपनी का, जो एक मेडिकल कंपनी होती है, फार्मास्यूटिकल कंपनी, वो अपने प्रोडक्ट को डॉक्टर्स के पास मेडिकल्स के पास लेके आके प्रमोट करते थे। बट आज वैसा तो नहीं ना, आज इनकी भी एक प्लेटफॉर्म बन चुकी है, तो वहां पे जाके वो अपने एडवर्टाइजमेंट वहां रन करते हैं। तो हर एक नीच की अलग अलग प्लेटफॉर्म बन चुकी है जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट रन किया जा रहा है। एंड सेकंड, कंपनीज कहाँ पे एड रन कर रही है, जैसे कि देखो ये सारी जो मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल दिए, जैसे यूट्यूब पे प्रमोट कर रही है, सोशल मीडिया पे कर रही है और गूगल पे कर रही है, राइट। एंड उसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट मुझे आपसे एक क्वेश्चन ये करना है कि ये सारा काम किसके जरिए हो रहा है, इंटरनेट के जरिए ना। अच्छा, आपको पता है मोबाइल किसने लॉन्च किया या लैपटॉप किसने, जो हमारा जो ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर किसने लॉन्च किया, बल्ब किसने लॉन्च किया, मतलब हमको बेसिक तो पता ही है ना। लेकिन हमें आपको मतलब अभी थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग से थोड़ा हट के पार्ट है जिसको जानना जरूरी है। इंटरनेट को कौन मैनेज करता है, ये सारी दुनिया तो इंटरनेट के पीछे दीवानी है ना। और मोस्ट ऑफ पीपल अगर आप देखो, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, यहाँ पे एंड्रॉइड कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ लोग एंड्रॉइड ही ना। आपको पता है आप अपना दिन भर कितना टाइम स्पेंड करते हो सोशल मीडिया पे, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे आप दिन भर कितना टाइम स्पेंड करते हो, पता है, देखना है। यूट्यूब दिखाता है ना और दिन में कितना करते हैं। हाँ, ओवरऑल आप पूरे मोबाइल में कितना टाइम स्पेंड करते हो, दिखाता है आपको पूरा, कभी बताया आपको। हाँ, बता देता है। अच्छा देखो, जो लोग एंड्रॉइड इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो क्या करो, मोबाइल के अंदर आपकी एप्लीकेशन जो सेटिंग एप्लीकेशन है ना, उसमें आप जाइए और यहाँ पे टॉप पे खाली आप सर्च कीजिए डिजिटल। आप जैसे डिजिटल यहाँ पे सर्च करोगे तो आपके सामने यहाँ पे डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल करके फीचर आ जाएगा। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे ना, तो क्लिक करने के बाद ये आपको बताएगा आपने आज दिन भर में कौन से एप्लीकेशन में कितना टाइम दिया। तो ये पार्ट आने के बाद ये आपको देखो बता रहा है 1 hour 43 मिनट्स। अब आपको ये भी बता रहा है कि कौन कौन से टूल्स पे आपने कितना टाइम दिया। तो उसको और डीप में जाना तो इस सर्कल पे जो दिख रहा है ना, आप क्लिक कर दो बीच में। आप क्लिक करने के बाद आपने, ये मंडे था, ये संडे, अगर आप यहाँ पे बैक करोगे तो कौन से दिन आपने किन प्लेटफॉर्म पे कितना दिया। एग्जाम्पल, मैं वेडनेसडे पे क्लिक कर रहा हूँ और वेडनेसडे पे मैं देख रहा हूँ कि व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, ये बाकी प्लेटफॉर्म में मैंने कितना कितना टाइम स्पेंड किया मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से जो भी प्लेटफॉर्म को आप यूज कर रहे हो ना, उस प्लेटफॉर्म पे आपका डेमोग्राफिक सेट हो रहा है कि आप एवरेज इस टूल के ऊपर पूरा मंथली एवरेज आप 30 मिनट्स तो देते ही। तो वो 30 मिनट्स में वो टूल है ना एनालाइज करता है कि 30 मिनट्स में आपने उसका कितने प्रोडक्ट को बाय किया।
एग्जाम्पल आप इंस्टाग्राम पे एक दिन में 30 मिनट स्पेंड कर रहे हो, तो पूरे मंथ में कितना हो गया आपका? ओवरऑल एक लमसम आप एक पकड़ लीजिए कि 18 घंटे हो रहे पूरे महीने में। अब मेटा की टीम एनालाइज करती है एक एक पर्टिकुलर यूजर का कि एक महीने के अंदर इस यूजर ने हमारे इंस्टाग्राम से कितने ऐड में क्लिक किया और कौन से प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाया। तो उसके बेस पे क्या होता है पता है, आपका फीड बनता है। फीड समझ में आ रहा है? आपका इंस्टाग्राम जब आप लोग ओपन करोगे और मैं ओपन करूंगा, हम सबका फीड डिफरेंट होगा, बिकॉज वो हमारे बिहेवियर और हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से। तो मेटा जब आपके बिहेवियर को समझता है तो उसके बेस पे आपके फीड को रेडी करता है वो, और उससे रिलेटेड चीजों को ही आपको शो करता है, ताकि आपकी उनकी मार्केटिंग और जो भी एडवर्टाइजमेंट पेड एड रन कर रहे हैं उनके प्रोडक्ट की जो मतलब मार्केटिंग इनहांस हो सके और अच्छे से इम्प्रूवमेंट हो सके, राइट? तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये समझना है कि एक जनरल क्वेश्चन के लिए कि ओवरऑल जो पूरी दुनिया इंटरनेट से पैसे कमा रही है, प्लेटफॉर्म पे पेड ऐड रन कर रही है, इन्फ्लुएंसर बन रही है, यूट्यूब क्रिएटर बन रही है, राइट? हालांकि वो ये सारे इंटरनेट को मैनेज कौन करता है पता है? I can. आईकेन एक कंपनी है, मतलब ये इसका फुल फॉर्म अलग है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये कंपनी है जिसने इंटरनेट को लॉन्च किया। इंटरनेट लॉन्च हुआ है 1998 में। इसका जो ईयर डेट है, फॉरवर्ड ईयर डेट है वो 1998 में। तो सबसे पहले मैं आपको आईकेन का फुल फॉर्म बता देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट कॉर्पोरेशन असाइन नेम्स एंड नंबर्स। ये इसका फुल फॉर्म है और ये आईकेन एस्टेब्लिश हुई है 1998 में। इसके जो फाउंडर का नाम है एस्टर डाइसन नाम है इसका, जिसने लॉन्च किया ना। और माइक ये अच्छा नाम था, मतलब माइक रॉबर्ट, मतलब उसका सरनेम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन माइक, एस्टर माइक करके मुझे याद है। तो एस्टर डाइसन जो है और एक माइक, ये दोनों ने मिलके इंटरनेट को लॉन्च किया है और 1998 में लॉन्च किया था। और एक ये यूएसए बेस्ड कंपनी है, बट ये कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है, ये कंपनी एक एनजीओ है जो पूरा वर्ल्ड इंटरनेट के जरिए मतलब पैसे कमा रहा है। वो कंपनी खुद एक एनजीओ है। एनजीओ की है ये आपको पता चलेगा बाद में। ये फ्रंट में एनजीओ है लेकिन बैकएंड में अच्छा खासा पैसा कमा रही है। बट ये पैसे कैसे कमा रही है, इसमें क्या टेक्निक यूज किया है, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और जो कंपनी से पैसा कमा रही है उस कंपनी के एक हाइड एंड सीक मार्केटिंग है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि आपने ज्वाइन किया डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग में सिर्फ मार्केटिंग ही नहीं, इसके साथ में कुछ एडिशनल जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें आपको थोड़ा सा नॉलेज आपकी इनहाउस होगी, थोड़ी सी नॉलेज आपकी इंक्रीज हो जाएगी, राइट? तो आईकेन पूरे इंटरनेट को मैनेज करता है ग्लोबली। अगर आपको पता हो, यहाँ पे पहले वेबसाइट पे जाने के लिए ना, अभी आप क्या सर्च करते हैं amazon.com, तो उस वेबसाइट में चले जाते हैं। पहले के टाइम पे नाम सर्च करना नहीं होता था, एक नंबर आता था, उस नंबर को कहते थे, मतलब अभी आज कहते हैं आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस जब जाते थे तब जाके वो वेबसाइट ओपन होती थी। तो पहले कुछ ऐसा टेक्निक था, उसको धीरे धीरे इन्होंने इनहांस करते करते फिर इन्होंने डोमेन लेकर आया। डोमेन आई थिंक काफी लोगों को पता होगा डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, बट जब हम सीखेंगे तो इससे पूरा स्क्रैच से सीखेंगे एक एक चीज को जानने के लिए। तो आई होप कि अभी आज के बाद आपको पता रहेगा इंटरनेट कौन मैनेज करता है। आईकेन को फुल फॉर्म है इंटरनेट कॉर्पोरेशन असाइन नेम्स एंड नंबर। ये 1998 में एस्टेब्लिश हुआ था, एक यूएसए बेस्ड कंपनी, कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है। ओके, अभी थोड़ा सा हम लोग अपने बैक पार्ट पे जाते हैं। और अभी एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिजिटल मार्केटिंग, आपको पता है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, बट डिजिटल मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट क्यों है, जिसके लिए हम लोग काफी लोग आए, यही मेन क्वेश्चन है ना कि डिजिटल मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट अभी हमें क्यों है। तो डिजिटल मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट हमें किस लिए, जैसे हमें अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, अपने ब्रांड को बिल्ड करना एंड अपने बिजनेस को ग्रो करना। हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट यही है कि हम किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि डिजिटल मार्केटिंग को अपने को प्रमोट करने के लिए मतलब तीन तीन चीजों को आपको पहले सबसे पहले ध्यान में रखना होगा, और इन दोनों में क्या डिफरेंट होता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था, जैसे आपका एक ई कॉमर्स का स्टोर आप प्लान कर रहे हो, उसको सेल करना है, और साकिब जो ऑनलाइन जो है, साकिब भी एक कंपनी में है, मैरिनोस करके उसका नाम है, जो स्किन एंड ब्यूटी का ही। तो साकिब भी ऑलरेडी उस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, जिसके अंदर उनको ई कॉमर्स के अपने प्लेटफॉर्म पे वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करके उसे बेचना चाहते हैं। तो आप दोनों में थोड़ा सा पहले डिफरेंस देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल, अगर आपकी ऑफलाइन शॉप है और आप एक ऑनलाइन बिजनेस करने जा रहे हो, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा? सबसे पहला, अगर आप ऑफलाइन शॉप खोल रहे हो तो क्या लग रहा है, ऑफलाइन शॉप खोलने के लिए आपको मिनिमम बजट लगेगा, उसको एक हैवी डिपॉजिट देना पड़ेगा। हैवी डिपॉजिट के साथ साथ में फिर और क्या करना पड़ेगा, आपको शॉप का इंटीरियर करना पड़ेगा, प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, मेन पावर रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी रखना पड़ेगा, मेंटेनेंस मैनेज करना पड़ेगा, फिर कस्टमर का वेट करना पड़ेगा। अब कस्टमर नहीं आया तो जितना भी मेहनत किया था वेस्ट होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा हिम्मत रखते हो, 3 महीना 5 महीना आप बैकअप लेके चलते हो, लेकिन 3 महीना 5 महीना में भी अगर नहीं चला तो पैसा वेस्ट ना। तो इन दोनों को मैंने क्या किया, इन दोनों को एक जगह पे ला के आपके अंडरस्टैंडिंग एक पॉइंट क्लियर हो सके, इसके लिए मैंने आपको ये ओपन करके दिखाया। मुझे बताना, अगर आप ऑफलाइन शॉप करते हो तो शॉप में एक टाइमिंग का लिमिटेशन होता है कि आपका 8 बजे खुलेगा और शाम में 8 बजे बंद होगा। अब वही अगर आपका ऑनलाइन स्टोर रहेगा तो 24 आवर्स अवेलेबल है ना। अगर आपको 10 बजे कुछ प्रोडक्ट चाहिए तो आप जेप्टो पे गए, मंगा लिए, 10 मिनट में आ गए। वही डीमार्ट अगर रात में 10 बजे खुला रहेगा, आपके लोकेशन में मान लो जल्दी बंद हो जाता है, या 12 बजे पकड़ो, 12 बजे डीमार्ट खुला रहेगा नहीं, लेकिन अगर वो बंद है तो भी तो भाड़ा जा रहा है ना उसका। लेकिन यहाँ पे वेबसाइट तो आपका 24 घंटे ओपन है ना, तो ये एडवांटेज हुआ ना। लेकिन किसके जरिए हुआ? डिजिटल था तभी हुआ ना, इंटरनेट आया तभी हुआ ना, उसके जरिए। उसके बाद, उसके पहले तो नहीं था ना। एंड देन उसके बाद उसका मंथली रेंट होता है। अगर आप छोटी सी छोटी शॉप लेने जाओगे, अगर आपका लोकेशन मैटर करता है कि किस लोकेशन पे ले लो, मोस्ट ऑफ तो आपको 10,000 में ही मिल जाएगा, 5,000 में ही मिल जाएगा, बट डिपेंड करता है आपके ख्वाब कितने बड़े, उसके बेस पे आप अपने शॉप को एक फाउंड करते हो। तो मैं मिनिमम रेंट पकड़ रहा हूँ यहाँ पे। एग्जांपल मान के चलिए, आप महीने का रेंट आप 10,000 रुपये देते हो, तो एक साल का कितना रेंट हो गया? 1,20,000 रुपीज हो गया। तो यहाँ पे आपको ईयरली वेबसाइट का रेंट कितना देना होता है? आपको ईयरली वेबसाइट का रेंट मैक्स टू मैक्स आपको 2,200-2,500 रुपए। और वेबसाइट का रेंट इसके लिए हो रहा है, मैं इसके लिए बता रहा हूँ, जिस तरीके से आप फिजिकल शॉप लेते हो ना भाड़े पे, उसी तरीके से इंटरनेट पे भी आपको स्पेस लेना होता है जहाँ पे आपकी वेबसाइट को होस्ट किया जाता है। आपकी वेबसाइट में कुछ डेटा होगा ना, डेटा लगेगा आपकी वेबसाइट का, जो कंटेंट है, टेक्स्ट है, इमेज है, वीडियो है, तो उसका भी तो कुछ जीबी रैम है ना, उसका भी तो वो कहाँ स्टोर होगा? तो वो स्टोर के लिए आपको इंटरनेट पे कुछ बाय करना पड़ेगा ना, कुछ स्पेस। तो वो स्पेस का आपको कुछ ईयरली पे करना पड़ता है, उसे होस्टिंग स्पेस कहते हैं, जो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा आगे कवर करके। तो यहाँ पे आपका ईयरली रेंट जो होता है ना, वो बहुत से होते हैं ना, 2,200 रुपए से लेके, डिपेंड करता है। अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे 5K लिखा है, तो 5K इसके लिए लिखा है जैसे जिसका ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो उसके लिए होस्टिंग स्पेस थोड़ा डिफरेंट होता है। और अगर जिसका स्टैटिक या डायनामिक वेबसाइट है तो उसका होस्टिंग स्पेस डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे हमने इसमें 5,000 इसके लिए लिखा है ताकि एवरी ईयर आपको जो रेंट पे करना पड़ेगा सिर्फ 5,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो अच्छा क्या है, ये वाला अच्छा है या ये वाला अच्छा है? ऑनलाइन वाला अच्छा है ना। अच्छा, थर्ड पॉइंट, यहाँ पे आपको इंटीरियर डिजाइनिंग करना पड़ेगा, वो और एक्सपेंसिव। अगर आप देखोगे, ब्यूटी सैलून जितने भी चल रहे हैं ना, इंटीरियर डिजाइनिंग के ऊपर चल रहे हैं। जिसका ब्यूटी ब्यूटी सैलून, जिसका लुक जितना अच्छा है, कस्टमर वहां उतने अट्रैक्ट होते हैं। फिर क्लोथिंग में देख लो आप, एंड परफ्यूम्स में देख लो आप, इनके इंटीरियर डिजाइनिंग में कितना खर्चा किया जाता है, हालांकि है तो प्रोडक्ट ही ना। ज्वेलरी में देख लो, फिर चश्मा जो लैंस का, उसमें देख लो, है इतना सा चश्मा, लेकिन उसको प्रेजेंटेशन उसका अच्छा करने के लिए डेकोरेशन वैसा किया जाता है। अगर आप कोई ज्वेलरी शॉप में, तनिष्क में चले जाओ, कल्याण में चले जाओ, है एक छोटी सी इयरिंग, है एक छोटी सी रिंग, लेकिन उसको प्रेजेंटेशन करने के लिए इतना अच्छे से वो इंटीरियर करके प्रोडक्ट को हाईलाइट करके दिखाते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा एक इंटरेस्ट आपका बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटीरियर करने के लिए आपको अच्छा खासा पे करना पड़ेगा। अभी आपने भी किया ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, जिसका आपको इंटीरियर डिजाइनिंग करना ना, वो वर्डप्रेस जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, वर्डप्रेस का आप बहुत अच्छी से अच्छी वेबसाइट बना सकते हो, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, राइट।
अभी मैंने वर्डप्रेस पे ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई है, कम से कम नहीं तो 7-8। अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको ऐसा लुक लगेगा कि यार ये मतलब ई कॉमर्स पे आपने मतलब वर्डप्रेस पे बनाया, आपको ऐसा यकीन नहीं होगा। अगर जिसको ई कॉमर्स का नॉलेज अगर होगा तो वो थोड़ा बहुत समझ जाएंगे, लेकिन जिसको नहीं है तो उनको ऐसा बिल्कुल लगेगा नहीं कि ये फ्री में बनाया है, जबकि फ्री में बनाया सारा कुछ। मैं आपको दिखाऊंगा आगे। यहाँ पे शॉप का कुछ मेंटेनेंस होता है ना, ऑफलाइन शॉप का। ऑनलाइन में कोई मेंटेनेंस का इतना है ही नहीं, नॉमिनल मेंटेनेंस होता है। नॉमिनल मेंटेनेंस मतलब कुछ आपको सॉफ्टवेयर अगर आपने ले लिया तो सॉफ्टवेयर का आपको एडिशनल कुछ पे करना पड़ता है। और शॉप मेंटेनेंस में मतलब जैसे कि लाइट बिल हुआ, राइट राइट, जैसे लाइट बिल हुआ, फिर इसके बाद में जो आप थोड़ा सा छोटा मोटा ब्रेकफास्ट करते हो, चाय वगैरह होता है वो हो गया, या कुछ भी इशू जो होता है नॉर्मली मेंटेनेंस वो। फिर यहाँ पे आपको ऑफलाइन में आपको एम्प्लॉय की सैलरी पे करना है, ऑनलाइन के अंदर आपको ऑटोमेशन वर्क करना है। यहाँ पे आपके शॉप के अंदर आप एम्प्लॉय को रखोगे, कोई भी कस्टमर आएगा तो प्रोडक्ट को पिच करेंगे ना, और हो सकता है उनको प्रोडक्ट बाय करने के लिए कन्विंस भी करे, तो कन्विंस करेंगे तब जाके प्रोडक्ट बिकेगा। लेकिन ऑनलाइन में तो वैसा कुछ नहीं है ना, कस्टमर को सर्च करेगा, प्रोडक्ट दिखेगा, बाय कर लेगा। या सेकेंड चीज, आप अपने ऐड चला दोगे, जब आपका ऐड चलेगा तो ऑटोमेटिक जब इंटरेस्टेड कस्टमर तक आपका ऐड पहुंचेगा तो उसको खरीदना रहेगा, तो बाय नाउ पे क्लिक करके वेबसाइट पे जाके बाय करेगा। किसी को कन्विंस करना पड़ा यहाँ पे? कन्विंसिंग पावर कहीं है? कहीं नहीं, जीरो आई। उसको चाहिए तो ले लेगा। अच्छा, उसने प्रोडक्ट पे आया, प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया बट लिया नहीं, तो भी हम उसको रिपीट रिपीट ऐड दिखाएंगे जब तक वो खरीदेगा नहीं। आपके साथ हुआ रहेगा ऐसा कि जिस प्रोडक्ट को अगर आप ऐड टू कार्ट करते हो तो उसका ऐड आपको हर जगह दिखता है। उसका रीजन है वो क्यों दिखता है, वो एक रीमार्केटिंग किया जाता है बार बार, इसलिए वो दिखता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका जो वर्क है ना ये पूरा ऑटोमेशन पे होता है, एक बार सेट करना होता है। जैसे प्रोडक्ट की इन्वेंटरी होती है ना, कि अगर आपके पास स्किन ब्यूटी का प्रोडक्ट 50 स्टॉक में है, तो अगर आपके 10 बिक गए तो ऑटोमेटिक आपको पता चलना चाहिए 40 स्टॉक आर लेफ्ट। तो जैसे ही वो इसका एक थ्रेशोल्ड होता है कि आपकी वेबसाइट पे अगर 5 प्रोडक्ट बचेगा तो ऑटोमेटिक आपको एक मेल आ जाएगा कि आपके पास अभी इस प्रोडक्ट का सिर्फ 5 स्टॉक ही बचा है। तो उस कंडीशन पे आप अपने स्टॉक को मेंटेन कर सकते हो, बट उसके लिए तो एक पर्सन इनफ है ना, जो ओनर है वो मैनेज कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे ऑफलाइन शॉप के अंदर एक टाइम कंसिस्टेंसी होती है, एक जॉब की टाइमिंग होती है ना, और एक कस्टमर की भी आने जाने की एक टाइमिंग होती है। और उसके बाद में अगर आपने 3 महीना चलाया, 5 महीना चलाया, जॉब नहीं मतलब अच्छा वर्कआउट नहीं हुआ तो आप बंद कर दो। लेकिन ऑफलाइन के अंदर तो वैसा नहीं है ना, आपको जरूरी नहीं ना कि आपको 12 घंटे टाइम देना है, यहाँ पे आपको 12 घंटे टाइम देना है। लेकिन ऑफलाइन के अंदर तो आपको कोई टाइम ही नहीं देना ना, कस्टमर के ऊपर है ना, वो कभी भी आके ले सकता है। और सेकंड बात सबसे अच्छी ये देखो, कस्टमर का भी फायदा देखो। कस्टमर अगर ऑफलाइन आ रहा है ना, उसका पैसा खर्चा हो रहा है ट्रैवलिंग में, उसका टाइम जा रहा है। लेकिन ऑफलाइन में उसका ऑनलाइन में उसका टाइम नहीं जा रहा है, डीमार्ट जाने के लिए उसे पैसे खर्चे करने नहीं पड़ रहे, ना टाइम देने पड़ रहे, खाली गूगल पे सर्च किया, डीमार्ट की वेबसाइट पे गया, प्रोडक्ट को बाय कर लिया, खुद प्रोडक्ट उसके घर तक डिलीवर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कस्टमर भी तो कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड है, और ऑफलाइन से अच्छा उसे ऑनलाइन से डिस्काउंट मिल रहा है। तो लोग कहाँ प्रीफर करेंगे, ऑफलाइन करेंगे ऑनलाइन करेंगे? एंड देन उसके बाद ट्रैवल एक्सपेंसेस अगर आप देखिए तो यहाँ पे वाला पॉइंट आ गया जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे ट्रैवल का एक्सपेंसेस सेव हो रहा है, पैसा सेव हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे उसे पेट्रोल लेके जाना है, फैमिली को लेके जाना है, और जहाँ खरीदने का तो उसे 10,000 का, वहाँ 15,000 20,000 का हो जाता और डिलीवरी का खर्चा होता है। हाँ राइट। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ एडवर्टाइजर क्या करते हैं जिनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक बजट को लगा देते हैं वो, कि अगर आप अबाउ 1000 रुपीज तक अगर आपका बिलिंग रहेगा तो डिलीवरी फ्री, एक कंडीशन हमें डालना पड़ता है। जो मैंने ई कॉमर्स में मतलब मैंने मोस्ट ऑफ टाइम सबको दिखाया है, तो आप लोग को भी वैसे सिखाऊंगा। और ट्रेडिशनल मार्केटिंग तो मैंने आपको आयोग की मैंने आपको कवर करी है। अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अगर देखो तो यहाँ पे लिमिटेड रीच होती है, बट यहाँ पे देखोगे तो ग्लोबल रीच, बट यहाँ पे ग्लोबल रीच ई कॉमर्स वालों की थी। लेकिन जो लोकल स्टोर होगा उनके लिए ग्लोबल रीच नहीं है, उनके लिए नियर बाय रीच ही होगी, लेकिन अनलिमिटेड यूजर तक हो जाएगी जो भी इस लोकेशन में रहता है। और यहाँ पे मतलब मोर एक्सपेंसिव होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, और डिजिटल मार्केटिंग इतना एक्सपेंसिव नहीं होता है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल की। और ऑडियंस यहाँ पे आप परफेक्ट टारगेट नहीं कर पाओगे, लेकिन यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में आप राइट ऑडियंस तक पहुंच सकते हो। एंड उसके बाद में यहाँ पे मेजरेबल डेटा नहीं है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये मेजरेबल डेटा है, जिससे आप ट्रैक कर सकते हो आपका कस्टमर कौन कौन कितने इंक्वायरी किए। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। ओके,
अभी हम लोग दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स एंड मॉडल्स को कवर करने वाले हैं। इसमें ऐसा है कि डिजिटल मार्केटिंग है शॉप के लिए स्पेशली नियर बाय ऑडियंस ही मतलब काम करता है, तो वेयर यू कैन यूज गूगल राइट एंड जैसे हम लोग कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो मैं मुझे कहीं पर भी सेल करना है, मोस्टली इंस्टाग्राम और फेसबुक ही काम होता है। वो हमें प्लेटफॉर्म का अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा। और दूसरा ये कि अगर नियर बाय लोकेशन है तो उसका प्रमोशन हम लोग गूगल पे भी करते हैं एज वेल एज हम लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी करते हैं। तो इंस्टाग्राम और फेसबुक तो वर्ल्ड वाइड हो गया, फिर सॉरी अपना ऑल ओवर इंडिया हो गया, तो शॉप के लिए ऑल ओवर इंडिया नहीं है उसमें फीचर्स है कि आपको कहाँ इवेंट करना है, उसके अंदर लोकेशन स्पेसिफाई है, तो हम लोग वैसे ही करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। तो वो आपके साथ हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेंगे, चाहे वो एक लोकल स्टोर हो या एक ग्लोबल हो या कंट्री बेस्ड हो, तो उसके बेस पे मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आपको लोकली प्रमोट करना है तो कैसे करना है, खाली आपको नवी मुंबई टारगेट करना है तो कैसे करना है, या अगर आपको सिर्फ महाराष्ट्र टारगेट करना है तो कैसे करना है, या फिर आपको अगर कुछ स्पेसिफिक इंडिया के टॉप सिटीज को टारगेट करना है तो कैसे करना है, और अगर आपको ऑल ओवर इंडिया टारगेट करना है तो कैसे करना है। तो उसमें पेन इंडिया लेवल टारगेट किया जाता है एंड ग्लोबल टारगेट करना है तो वो कैसे करना है। तो ग्लोबल टारगेटिंग के लिए मतलब ग्लोबल टारगेटिंग के लिए बहुत मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर आपको फोकस करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप अमेजोन देखो तो अमेजोन एक ग्लोबल कंट्रीज मतलब वर्ल्ड वाइड वो कैटर करता है, तो वर्ल्ड वाइड कैटर करने के लिए उसका जो एक्सपेंसेस है वो उतना लग भी रहा है, और उसके लिए इतने मेन पावर भी लग रहे हैं, उसके लिए उतने इंजीनियर भी लग रहे हैं। AWS को मैनेज करने के लिए अच्छे अच्छे इंजीनियर्स को बहुत सा अमाउंट पे करते हैं। अब हो रहा है क्या एग्जांपल, अगर इंडिया में आप अमेजोन देखोगे तो आपको यहाँ पे इंडियन रुपीज दिखेगा, यूएस के अमेजोन में जाओगे तो वहाँ पे आपको डॉलर्स में दिखेगा, अफ्रीका के इसमें जाओगे तो अफ्रीकन रुपीज में दिखेगा। तो ये अलग अलग इंजीनियर्स मतलब ये सारी चीजों को मैनेज कर रहे हैं AWS से। AWS अमेजोन का खुद का एक बनाया हुआ पोर्टल है जिसके बारे में मैं आपको वेबसाइट डिजाइनिंग में बताऊंगा। और यहाँ पे जैसा आप बोल रहे हो ना वैसा नहीं है, हम लोग बहुत अच्छे से लोकल बिजनेस को भी प्रमोट कर सकते हैं। राइट, अभी समीर आपके साथ जो है, समीर ऑलरेडी एक CCTV कैमरास को प्रमोट कर रहा है जो कि दिल्ली में ना, वो दिल्ली में, तो उसका डेली बजट 500 रुपीज है, लेकिन पूरे मंथ में वो 15,000 रुपीज एड में स्पेंड करता है। बट मोर देन मे बी तो वो एक मैं समीर को मैंने अंदाजा बताया कि आराम से वो 1.5 से 2 लाख रुपए वहां से बना रहे हैं उस एड से। तो जब वो सर्विस बेस्ड बिजनेस है, वो सर्विस जा जाके दे रहे, वो इतना कमा सकते हो, तो आप तो एक शॉप लेके बैठो, आप कितना कर सकते हो, राइट। और आपकी तो ऑनलाइन शॉप भी कर सकते हो, ऑफलाइन शॉप भी कर सकते हो, तो कैसे प्रमोट कर सकते हो वो अभी हम लोग यहाँ पे अच्छे से देखते हैं। तो मेरे पास एक केस स्टडी भी है, मेरा फ्रेंड है जिसका लॉकडाउन में उसकी जॉब चली गई थी, तो एक सलोन में बिजनेस मतलब सलोन में वो एम्प्लॉय था, तो लॉकडाउन में उसकी जॉब चली गई थी, तो वो लॉकडाउन के बाद से फिर बहुत सारे लोगों ने वाइंड अप कर दिया, तो कहीं जॉब नहीं लगी। तो मैंने उसके बिजनेस को प्रमोट किया था, उसका एक पेज वगैरह सारा कुछ बना के। आज वो एक बहुत अच्छी जगह स्पेसिफिकेशन मतलब हाई डिमांडेड लोकेशन में बैठा अपना सलोन डाल के सीवुड्स में। तो वहां पे मतलब उसकी जर्नी एज ए एम्प्लॉय से लेके ओनर तक जो मैंने उसको मतलब करके दिया था, जैसा मैं अपने क्लाइंट्स के लिए करता हूँ वैसा उसके लिए भी किया था। तो कैसे स्केल किया था मैं उसकी जर्नी भी आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि वो एक लाइफ केस स्टडी है ना, तो हमारे बिजनेस में भी हमें हेल्प कर सकते हैं कि कहाँ पे कैसे उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके आपको आगे बढ़ना है। तो मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा पूरा। तो उसका कैंपेन का मेरे पास काफी डेटा है डे 1 से लेकर लास्ट तक, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि हमने स्टार्ट कैसे किया और एंड कहाँ तक हुआ, स्केल कैसे हुआ। और ऐसे सारे क्लाइंट्स का जब जब जो पार्ट कवर करेंगे तो मैं अपने क्लाइंट्स का प्रैक्टिकल आपको कैंपेन वगैरह दिखाते जाऊंगा, ठीक है। अभी डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, तो सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग के 4 पिलर्स होते हैं जिसके ऊपर ही सारे टूल कनेक्टेड होते हैं। एक डिपेंडेंसी होती है ना, वो डिपेंडेंसी, ये 4 जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, ये मेन पिलर्स होते हैं, इनको आपको पहले सीखना है। और जितने भी बाकी मॉडल है वो सारे इन पिलर से इंटरकनेक्टेड है, कुछ अलग अलग नहीं है। कैसा घर होता है, घर के 4 पिलर्स होते हैं, तो चारों पिलर के अंदर उसके बाद में बहुत सारी चीजें होने के साथ अटैच होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले 4 पिलर को जो हम लोग कवर करने वाले हैं, उसमें सबसे पहला जो है वो है सोशल मीडिया।
तो सोशल मीडिया हम लोग बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। अब सोशल मीडिया में कौन कौन से टूल आ जाते हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म आते हैं। एक मेटा आता है। अच्छा, जब मैं आपसे बात मेटा की करूं तो आप समझ जाइए मेटा मतलब क्या है। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, थ्रेड्स है। थ्रेड्स पता है आपको, ट्विटर का अल्टरनेटिव, मैसेंजर है। तो ये सारी चीज जो है ना वो मेटा की है। जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, थ्रेड्स एंड मैसेंजर। तो सोशल मीडिया के अंदर हम ये सारे टॉपिक को कवर करने वाले। ओके, एंड देन उसके बाद में हम लोग यहाँ पे स्नैपचैट कवर करेंगे एंड यहाँ पे लिंक्डइन कवर करेंगे। तो मोस्ट ऑफ हम लोग सोशल मीडिया में इन प्लेटफॉर्म को हम लोग कवर करने वाले। ट्विटर को कवर करने वाले नहीं है क्योंकि ट्विटर के ऊपर अब एडवर्टाइजमेंट की कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हाई हो गई है और उसके काफी हद तक जो कस्टमर है वो मूव ऑन हो चुके थ्रेड्स पे। तो इसके लिए आप थ्रेड्स पे यहाँ पे हम लोग उसकी मार्केटिंग कैसे करना है वो कवर करेंगे। ओके, तो सबसे पहला आप पिलर जो है वो आप सोशल मीडिया कवर करेंगे एंड देन उसके बाद में दूसरा SEM कवर करेंगे। SEM मतलब होता है सर्च इंजन मार्केटिंग। अब सर्च इंजन मार्केटिंग हमारे इंडिया में जो मोस्ट लोग जो यूज करते हैं वो गूगल यूज करते हैं, राइट। तो गूगल मतलब हम लोग जो यूज करने वाले क्या यूज करने वाले, गूगल। तो गूगल पे आपको सर्च इंजन मार्केटिंग कैसे करना है, जैसे कि एक PPC एक एड्स होता है, एक शॉपिंग ऐड होता है, डिस्प्ले एड्स होता है इसमें एंड वीडियो एड्स होता है। तो सर्च इंजन मार्केटिंग में ये टाइप्स का आपको ऐड कैसे रन करना है वो हम लोग सीखेंगे और इसके अंदर कुछ इसके बेसिक फंडामेंटल भी है और इसके कुछ एड्स के टर्मिनोलॉजी भी है। जब मैं आपको लेक्चर स्टार्ट करूंगा तो उस कंडीशन पे हम लोग एक एक टॉपिक के ऊपर हमारा बहुत अच्छा समय जाने वाला है, तो हम लोग तब सीखेंगे। बड़ी मैं आपको पिलर बता रहा हूँ कि इन पिलर को आपको सीखना बहुत जरूरी है। तो सोशल मीडिया है, SEM है एंड वेबसाइट। वेबसाइट के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप है ना हम लोग लैंडिंग पेज कैसे बनेगा एक वो सीखेंगे। डायनामिक वेबसाइट कैसे बनेगा हम लोग वो सीखेंगे और एक ई-कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनेगा हम लोग यहाँ पे वो भी सीखने वाले। डायनामिक वेबसाइट इज मतलब एक सर्विस बेस्ड वेबसाइट होती है जहाँ पे आप अपने आप अपने प्रोडक्ट की जो भी सर्विसेज है उसको कितने अच्छे से वहाँ पे प्रेजेंट आप कर रहे हो अपनी वेबसाइट को। एग्जांपल मान के चलना, चैट जीपीटी पता है, तो चैट जीपीटी पे आप जाके सब्सक्रिप्शन ले रहे हो बट वहाँ पे पेमेंट भी कर रहे हो ना, आप पेमेंट करने के बाद उसका एक सब्सक्रिप्शन ले जा रहे हैं। तो पेमेंट अगर उसमें ऑप्शन हटा दो तो वेबसाइट पूरी एज डायनेमिक है। डायनेमिक वेबसाइट होती है और एक स्टैटिक वेबसाइट होती है जो 5 to 6 पेजेस की होती है ना, उसे डायनेमिक या स्टैटिक वेबसाइट कहते हैं। तो वर्डप्रेस के अंदर डायनेमिक और स्टैटिक दोनों सेम ही होती है बट अगर आप इसे कोडेड लैंग्वेज में देखने जाएंगे तो कोडेड लैंग्वेज में ये दोनों अलग अलग है। तो डायनेमिक वेबसाइट अगर आप कोडिंग में अगर बनाने जाओगे तो उसमें जावा पाइथन लगेगा बट अगर आप स्टैटिक बनाने जाओगे तो उसमें CSS और PHP फॉर्मेट में बनेगा। बट ये दोनों टाइप की वेबसाइट आप वर्डप्रेस से फ्री में बना सकते हो। अब बनाने जैसे ग्रोटेक का वेबसाइट देखा आपने, तो ग्रोटेक का वेबसाइट एक डायनेमिक वेबसाइट है। तो सर्विस बेस्ड वेबसाइट जो होती है वो आपको बनाने कैसे वो हम लोग यहाँ पे वेबसाइट डिजाइनिंग में सीखेंगे। तो जिसमें सबसे पहला एक लैंडिंग पेज हो जाता है। लैंडिंग पेज जो होता है स्पेसिफिक किसी एक प्रोडक्ट के आपको एक प्रोडक्ट को अगर प्रमोट करना है तो उसका लैंडिंग पेज बनाना है और ये मोस्ट ऑफ रियल एस्टेट में ज्यादा इस्तेमाल होता है, राइट। एंड देन डायनामिक वेबसाइट और ई-कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनाएंगे ये पूरा हम लोग सारा कुछ हम लोग स्क्रैच से सीखने वाले हैं। कोई भी टेम्पलेट लेके नहीं सीखेंगे। स्क्रैच से मतलब समझ में आ रहा है आपको, एक एक चीज जीरो से स्टार्ट होगी जिससे आपको समझ में काफी आसानी से आएगा। एंड फोर्थ पॉइंट जो है SEO। अब SEO के अंदर मतलब आपको यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स है, जैसे कि पहला आता है ऑन पेज आता है, पता है किसी को ऑन पेज पता है? ओके,
ऑन पेज हो गया, फिर ऑफ पेज हो गया, फिर लोकल, टेक्निकल, और फिर ई कॉम एसईओ। ई कॉमर्स प्रोडक्ट एसईओ। तो ये मेन 4 पिलर है जिन्हें आपको सीखना होगा। इन 4 पिलर्स के बाद बाकी सारे टूल्स जो है वो इसी के साथ इंटरकनेक्टेड है। एग्जांपल, मेटा के साथ बहुत सारे टूल कनेक्टेड है। तो जब आपका ये मेटा मेन सोशल मीडिया जब आपका कवर हो जाएगा, तो सोशल मीडिया का कवर होने के बाद उसका टूल्स आपको सिखाया जाएगा कि इसमें कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल, हम इंसान है, हमारे बॉडी के अंदर सबसे मेन पार्ट जो है वो हार्ट है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि आंख, नाक, कान इसका इस्तेमाल नहीं है, माइंड इसका इस्तेमाल नहीं है, सब इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, तभी चल रहे हैं। तो उसी तरीके से इन चारों मॉडल्स के अंदर आपको पहले हमारा इसमें काफी समय जाने वाला है। सोशल मीडिया के अंदर हमारा हो सकता है इसमें हमारा 18 से 20 घंटा इसमें जा सकता है। अच्छा, 4 महीने के लिए एक सब्जेक्ट? नहीं ऐसा नहीं है। 4 मंथ का कोर्स है वैसे? नहीं ऐसा नहीं है इसके अंदर। अगर जिस मॉडल के अंदर अगर आपका मैंने कुछ असाइनमेंट अगर आपको दिया या आप प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हो, तो उस टाइम पे हमें थोड़ा होल्ड करना पड़ता है। होल्ड करना पड़ता है मीन्स कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्लास का अलाइनमेंट होना एक साथ बहुत जरूरी है। नहीं तो अगर हम लोग टॉपिक आगे कर देंगे तो कोई ना कोई एक पीछे छूट जाएगा। तो वो छूटे नहीं करके इसके लिए हम सबको ट्रैक करेंगे कि वो अपना राइट टाइम पे अपना असाइनमेंट करें, क्योंकि देखो आप सबका एक गोल है और आपके गोल को अचीव करना है, तो आपको, मुझे, हम दोनों को, सबको मिलकर करना पड़ेगा। तो मैं प्रैक्टिकल अगर आपको असाइनमेंट दूंगा तो अगर आप उसे करोगे तो वो रियल टाइम में आपको वो हेल्प करेगा, अदरवाइज फिर फेल हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कुछ सीखा ही नहीं। तो मुझे आपका गोल अचीव कराना है। एग्जैक्टली। देन हम लोग फिर गूगल एड्स हम लोग कवर करने वाले। गूगल एड्स के अंदर हो सकता है हमारा 12 से 14 घंटा यहाँ लग सकता है। आप सोच के देखो, 18 से 20 घंटा अगर लग रहा है, 12 से 14 घंटा लग रहा है, तो इतना घंटे में हम लोग क्या करने वाले हैं? मतलब कितने बेसिक लेवल के से हम लोग एडवांस लेवल तक जाने वाले हैं। मैं आपको ये, जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा ना, तो इंटरमीडिएट वाला जो लेवल का जो पर्सन होगा ना डिजिटल मार्केटिंग में, वो आपसे बहुत दूर रहेगा, क्योंकि मैं काफी हद तक आपको प्रो लेवल तक लेके जाने की कोशिश करूंगा। बट डिपेंड करेगा कि आपका प्रैक्टिकल कितना हो रहा है, तो आपका फिर उस तरीके से आप कनेक्ट होते जाओगे। वेबसाइट डिजाइनिंग के अंदर हमारा इसमें कम से कम 18 से 20 घंटा यहाँ पे भी हमारा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाँ, एसईओ के अंदर आपका 8 से 10 घंटा जा सकता है। एंड इसके बाद में जो हमारे हाथ में जो बचेंगे कुछ तकरीबन, नहीं भी तो आई होप कि हमारे हाथ में शायद 1 महीना और बचेगा। तो 1 महीने के अंदर हमारे इसके जितने भी टूल्स है ना, उनको सबको कवर करने वाले हैं। अगर अभी टूल्स देखा जाएगा तो टूल्स के अंदर भी बहुत कुछ है। जैसे एग्जांपल, एक कंटेंट मार्केटिंग, आप अपने प्रोडक्ट के लिए कंटेंट कैसे बनाओगे, ये भी एक मार्केटिंग होती है ना, कंटेंट मार्केटिंग। फिर इसके बाद में ईमेल मार्केटिंग, फिर इसके बाद में एफिलिएट मार्केटिंग, फिर कोर्स होने के बाद अगर आपको फ्रीलांसिंग करना है, तो फ्रीलांसिंग के अंदर मैं आपको एक 40,000 से लेके 50,000 रुपीज की मैं आपको एक रोड मैप बना के दूंगा, जिसमें जो मॉडल मैंने आपको सिखाया उसी के बेस पे आप फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हो विदाउट जॉब, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। मैंने खुद ने फ्रीलांसिंग किया है, पूरी स्किल को अच्छे से सीखने के बाद मैं डोर टू डोर शॉप में विजिट करता था और मैं अपने क्लाइंट को क्लोज करता था। अगर आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, मेरी लाइफ की थोड़ी सी जर्नी है ना, तो दिखाना अच्छा लगता है थोड़ा। मतलब मुझे पता नहीं था कि मतलब ये मुझे काम आएगी आगे किसी को बताने के लिए, दिखाने के लिए, लेकिन मतलब मेरे लिए मतलब वो एक इंस्पिरेशन स्टोरी है। ये जो फोटो है ये 2020 की है। तो ये एक होटल के रेस्टोरेंट है और ये एक ब्यूटी सैलून वाले मतलब क्लाइंट थे। हम लोग वहां गए थे और अच्छे से पूरा परफॉर्म वगैरह लेके जाते थे कि हम लोग क्या सर्विस देने वाले हैं, तो सर्विस पिच करते थे। और उसके बाद में सारा कुछ अगर देखो यहाँ पे 2020, और ये कौन सा क्लाइंट है,
ये मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक का क्लाइंट है, और वो स्पेशली मतलब कोई कंपनी पे चेक नहीं देते थे। अगर आप कोई भी कंपनी वाला अगर आपको कोई प्रोडक्ट प्रमोट करेगा तो अपने नाम से चेक दोगे आप उसे? एग्जाम्पल, मैं कंपनी से आया अमेजोन की, मैंने आपको प्रोडक्ट दे दिया, भेज दिया, आप पेमेंट करो बोले चेक में, तो आप चेक कंपनी के नाम से दोगे ना। मैं आपको बोला नहीं कंपनी का नहीं, मेरा नाम डाल दो, पर वो बोले आप प्रोडक्ट ले जा, आपके नाम से पेमेंट नहीं करूँगा। तो क्लाइंट से मतलब मेरा रिलेशन मतलब इतना अच्छा मेरा रहता था, उनको जो मैं सर्विस देता था, तो उसके बेस पे वो खुद मेरे मतलब मुझे मेरे नाम से वो पेमेंट करते थे। हालांकि ऐसे एक चेक नहीं, मतलब बहुत सारे चेक है। ये वो प्रोडक्ट है, ये मेरा मतलब जिसके ऊपर मतलब मैंने ओवरव्यू पूरा बनाया था कि हम क्या क्या प्रोडक्ट क्या क्या सर्विस देंगे। बस वो मिल गया था मुझे कुछ, इसके लिए मैंने रख लिया था। तो ये फ्रीलांसिंग के अंदर जो मैंने आपको बताया ना, फ्रीलांसिंग के अंदर तो वैसा कर सकते हैं। मैं फ्रीलांसिंग में उस टाइम पे 2020 में 2019-20 में मतलब मैं उस टाइम में मतलब इसके अंदर महीने के आराम से 80,000 से लेके 1,30,000 1,40,000 तक मैं अच्छे से बना लेता था। बड़ी सारी चीजें का वो भाई जब आपके पास स्किल थी, प्रैक्टिकल आपने कुछ क्लाइंट का काम किया था, तभी तो आप उसके सामने जाके बैठे हो। वो आपसे 10 नहीं आपसे 100 सवाल भी करेगा तो आप कैपेबल हो गए हो उससे आप आंसर करने के लिए, तो अब आपको कोई बीट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे अभी हम लोग फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं कोर्स कंप्लीट होने के बाद। तो अगर स्टार्टिंग में इनिशियली मैं सबको एक ही क्लाइंट दे सकता हूँ, मतलब आपको क्लाइंट क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्टार्ट में। जब आप एक क्लाइंट का काम क्लोज कर दोगे, एक क्लाइंट का काम जो आप अच्छे से करोगे, तो दूसरा क्लाइंट ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। कौन देगा? वही पर्सन देगा जिसका आप काम कर रहे हो, क्योंकि मुझे क्लाइंट ऐसे ही मिले। आज मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट है, बट मुझे क्लाइंट और मतलब पड़े हैं, बट मैं ले नहीं पा रहा हूँ क्योंकि समय नहीं है। अगर काम ले लिया और कर नहीं पाए तो नाम खराब हो जाएगा। तो आप उतना ही लेना जितना कर सकेंगे, बट स्किल को आने के बाद। तो आप एक कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, फिर इसके बाद में एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? एक मिनट, यूट्यूब चैनल क्रिएशन और इसके साथ में इसके वीडियोस को कैसे रिकॉर्ड करना है, और वीडियोस रिकॉर्ड करने के साथ साथ में वाईटी का एसईओ कैसे करना है, ये भी। ये पूरा 4 आवर्स का लेक्चर है, ये 4 घंटे का लेक्चर होगा कि अगर आपको अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है तो यूट्यूब चैनल का पूरा चैनल सेटअप कैसे किया जाता है, आपको रिकॉर्डिंग में कैसे बात करना होता है, आपको कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट करना है, और उस वीडियो का एसईओ कैसे करना है, ताकि आप गूगल पे सर्च, यूट्यूब पे सर्च करते हो ना तो वीडियो आ जाते हैं बहुत सारे, तो वो ऐसे नहीं। रिकॉर्डिंग में सब एडिटिंग भी वो सभी आपसे हाँ हाँ, अभी नीचे भी मैं और मेंशन कर दूंगा मतलब सारी चीजें। हाँ मतलब ब्लॉग हो गया, या आपको अपना चैनल स्टार्ट करना है, आप किसी चीज में आप एक्सपर्ट हो और आपकी एक्सपर्टीज शेयर करनी है, तो करना कैसे, स्टार्ट कहाँ से करना है, बात कैसे करना है कैमरे के सामने, कॉन्फिडेंटली बात कैसे करना है। तो ये इसके अंदर बहुत सारी टेक्निक होती है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो ऑटोमेटिकली आप स्टार्ट कर दोगे वैसा। एंड देन इसके बाद में डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, और फिर गूगल्स के बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे एक होता है गूगल सर्च कंसोल, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, गूगल मर्चेंट सेंटर, गूगल एनालिटिक 4, गूगल एडसेंस। तो ये जितने भी टूल्स है ना, मतलब मैं अभी शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आप ऐसे ही लिख लो। आपको जो पीडीएफ जो दिया गया ना ब्रोचर, उस ब्रोचर के अंदर सारा कुछ मेंशन है, पर मुझे आपको मेन एक्सप्लोर ये करना था कि मेन जो पिलर्स होते हैं ना, ये अगर आप सीखेंगे, ये सीखने के बाद ही सारे टूल्स इसी के साथ इंटरकनेक्टेड है। वेबसाइट होगा तभी आपके पास ईमेल मार्केटिंग कर पाओगे, राइट? वेबसाइट आपको बनाने आ जाएगी तभी आप फ्रीलांसिंग कर पाओगे। एसईएम अगर आपको आ गया तभी आप उसके अंदर वीडियो ऐड, डिस्प्ले ऐड, शॉपिंग ऐड अपने ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए कर सकते हो। अगर आपको सोशल मीडिया ऐड आ गया तभी जाके आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो।
जैसे स्नैपचैट, लिंक्डइन, ट्विटर, यहाँ पे कैसे ऐड रन करना है। मैंने ट्विटर वर्ड यूज किया, ट्विटर पे ऐड रन नहीं करेंगे हम लोग थ्रेड्स पे ऐड कैसे रन करना वो इसमें देखेंगे। फिर इसके बाद में वेबसाइट बन जाती है, तो आप उस वेबसाइट का एसईओ कैसे करना है। मैंने एक बिल्डर से चार्ज किया था एक वेबसाइट का एसईओ करने के लिए, और उसको ड्यूरेशन बोला था 6 मंथ में आपकी वेबसाइट मैं टॉप 10 पेजेस में लेकर आ जाऊंगा। तो 6 मंथ से भी कम टाइम लगा था, मैंने उसकी वेबसाइट को 7 नंबर की रैंकिंग पे लेकर आया था, और उसके लिए मैंने उसको चार्ज किया था 6 मंथ के लिए $50,000। और मैंने काम उसमें किया था सिर्फ 1.5 महीने, और ऑटोमेटिकली 3-3.5 महीने के अंदर वो टॉप 10 के अंदर आ गया था, जिसके अंदर 99 एकड़, नो ब्रोकर, मैजिक ब्रेक ये सबको पीछे छोड़ दिए थे, बट 2-3 लॉजिक इस्तेमाल किया था जिससे टॉप में आ गए थे। और खाली बिल्डर ने उस चीज के लिए मतलब $50,000 पे किया था। चैम्बूर की बिल्डर मतलब रोहाटेक कंपनी है, बैंगलोर की कंपनी है, तो चैम्बूर में एक लोकेशन है सिंधी सोसाइटी, वहां का प्रोजेक्ट था, तो उसका मैंने उसको टॉप 10 में लगा दिया था। तो वो टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आप अपने प्रोजेक्ट के लिए रियल एस्टेट में किस तरीके से टॉप 10 में ला सकते हैं। ओके, तो ये पार्ट हम लोग है ना पूरे ओवरऑल 4 महीने के अंदर हम लोग कवर करने वाले। कल से जो स्टार्ट करेंगे वो सोशल मीडिया स्टार्ट करने वाले। तो इसके लिए मतलब मेक श्योर करना कि आप एक बुक और एक पेन कैरी करना, क्योंकि हम लोग बहुत सारे यहाँ पे थ्योरी को हम लोग नोट डाउन करने वाले, तो वो आपको लिखना रहेगा। और साथ ही में आपको जो भी रिकॉर्डिंग, जो भी लेक्चर हमारे होंगे, अगर आप उस दिन नहीं आ पाए तो उस लेक्चर की ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग हो जाएगी। तो वो रिकॉर्डिंग क्या होगा ना, जिस दिन आप नहीं आ रहे तो उस समय आप वो रिकॉर्डिंग टाइम निकाल के देख लेना, बिकॉज अगर आप नेक्स्ट डे आओगे तो फिर सब ऊपर से बाउंस हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट मतलब अलाइनमेंट उनका ब्रेक हो, तो आपको इसे मेंटेन रखने के लिए आपको एक थोड़ा बहुत आपको रिकॉर्डिंग दिखना पड़ेगा जब आप सुपर इमरजेंसी में नहीं आ पा रहे। ओके, तो कल हम लोग पार्ट करेंगे सोशल मीडिया का स्टार्ट करेंगे, और वहां से अपना डिजिटल मार्केटिंग मतलब जो कॉन्सेप्ट को पूरा स्टार्ट करेंगे। अभी किसी के माइंड में कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन है जो करना है? अच्छा समीर ने एफिलिएट मार्केटिंग पूछा था, राइट? एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? एग्जांपल मान के चलो, ये एक सप्लायर है, इसके पास है ना बहुत सारे शूज है, और ये शूज को ना ऑनलाइन बेच रहे कितने में? 1299। ये शूज को ये क्या बेच रहे हैं? 1299 में बेच रहे हैं। कहां पे? पूरे इंडिया में। और ये शूज मतलब मान के चलो ये एडिडास पूरे ऑल ओवर इंडिया में 1299 रुपीज का शूज बेच रहा है, बट एडिडास चाह रहा है कि उसके प्रोडक्ट को और कोई प्रमोट करे ताकि मेरा प्रोडक्ट दिन भर में और ज्यादा बिके। तो हुआ क्या, समीर ने एडिडास से क्या किया ना, एक कांटेक्ट किया, एक टैग किया कि मैं आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करके दूंगा। तो एडिडास ने बोला कि ठीक है समीर, एक काम करो, ये जो प्रोडक्ट है मैं 1299 में बेच रहा हूँ, अगर आप प्रमोट करोगे ना तो मैं आपको ये 899 में दे दूंगा। 899 में आप मुझे बेच के दो, मतलब 899 में समीर को दे रहे हैं। अब समीर ने क्या किया, इसी प्रोडक्ट को 1299 में लगा के ऑनलाइन बेचना स्टार्ट किया, और वहां से समीर जो भी प्रोडक्ट बेच रहा है तो 899 ऑटोमेटिकली एडिडास ले रहा है, और जो ऊपर का जो पैसा है वो समीर को दे रहा है। तो हुआ क्या, आप बीच में एक क्या बन गया, एक बीच में आप एक प्रमोटर बन गए, जो इसके प्रोडक्ट को लेके आप ऑनलाइन प्रमोट कर रहे हो और उसके प्रोडक्ट को बेच के दे रहे हो। समीर को क्यों रखा उसने पता है, या समीर जैसे लोगों को उसने क्यों रखा, और भी जितने भी आप रहे? हो सकता है एडिडास अपने प्रोडक्ट को उतने अच्छे से प्रमोट नहीं कर पा रहा जितने अच्छे से अफिलिएट मार्केटर कर पाए। तो हर एक की प्रोडक्ट की प्रमोट करने की टेक्निक अलग अलग होती है। तो इसके लिए क्या होते हैं ना, ऐसे बड़े बड़े वेंडर जो है ना, एडिडास ले लो, मिंत्रा ले लो, अमेजोन ले लो, फ्लिपकार्ट ले लो, और जितने भी कंपनी, आपको हर कंपनी के अंदर मिलेगा एफिलिएट पार्टनर। आप उस कंपनी की जब एफिलिएट पार्टनर बनते हो तो इसका मतलब आप उस कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो। स्मॉल स्केल में देखना चाहे तो आजकल शॉपकीपर्स घर घर लेडीज को वो लोग देते, तो व्हाट्सएप में अपने स्टेटस पे रखो, फिर वो सेल करती है। एग्जैक्टली, तो वैसे ये ही हो गया वो एफिलिएट मार्केटिंग। राइट। अब जैसे मीशो, हाँ मीशो भी वैसे ही करता है, राइट? तो मीशो क्या कर रहा है, लेकिन मीशो के हिसाब से अगर देखा जाएगा ना, उसका आरटीओ बहुत ज्यादा है, 50% है। आरटीओ मतलब प्रोडक्ट का कैंसिलेशन रेट। अब हो रहा है क्या, वो प्रोडक्ट जिस तरीके से दिखा रहे हैं ना, तो आने के बाद प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं मिलती, तो इसके लिए उसमें कैंसिलेशन रेट ज्यादा है। बट
उसने ये जरूर सिखाया लोगों को कि आप घर बैठे कैसे एक इनकम कर सकते हो। तो एक आइडिया मिलने के बाद आप अच्छे प्लेटफॉर्म पे मतलब डाइवर्ट हो सकते हो। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि अगर आप देखोगे ना तो Amazon आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। Amazon, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, इनके एफिलिएट पार्टनर बनो आप, क्योंकि मल्टी सेलर इनके प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। आपको एक एक प्लेटफॉर्म पे नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी। यही प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लो, यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट है। जिस प्रोडक्ट को आप बहुत अच्छे से जानते हो, ये प्रोडक्ट को मैं बेच सकती हूँ ऑनलाइन बहुत अच्छे से, उस प्रोडक्ट को आप प्रमोट करो। अब समीर 899 शूज को बेचने के लिए हो सकता है समीर का 200 रुपया खर्चा हो, तो समीर का 899 क्लाइंट को गया और समीर ने इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए 200 रुपया लगाया, तो कितना हो गया टोटल? 1100 हो गया। समीर को कितना बचा? तो 200 रुपया समीर को बचा है ना। बट ऐसा नहीं कि आपको 899 में मिला तो आप ऐसे फ्री में बेच दोगे, आपको भी प्रमोट करने के लिए पैसा लगने वाला है ना। तो एड कॉस्टिंग हटाने के बाद जो प्रॉफिट मार्जिन लगता है वो आपका होता है। तो आप जो एफिलिएट मार्केटिंग देख रहे हो ये इंडिया की है, मैंने एफिलिएट मार्केटिंग यूएस बेस की है, जिसे क्लिक बैंक कहते हैं। क्लिक बैंक पता है किसी को? ओके, क्लिक बैंक एक यूएसए बेस्ड एफिलिएट मार्केटिंग है प्रोग्राम, जिसका अकाउंट भी इंडिया में 90% लोग से नहीं बनता है। आप उसका अकाउंट बनाने जाओगे, बनाने से पहले अकाउंट बैन हो जाएगा। तो मैंने यूएसए में एफिलिएट मार्केटिंग किया था और मेरा जो प्रोडक्ट का नाम था वो ग्लूको ट्रस्ट नाम था। ग्लूको ट्रस्ट एक प्रोडक्ट का नाम है जो एक डायबिटिक प्रोडक्ट था, जो यूएसए में मैंने उसका एड रन किया था। तो एक एक क्लिक का वहाँ पे डॉलर में चार्ज होता है, तो मुझे एक क्लिक का जो चार्ज होता था वो मोर देन 450 रुपीज होता था इंडियन। तो मैं वो भी आपके साथ बताऊंगा कि मैंने उस प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट किया था और वहाँ से कितनी अर्निंग की। तो ये जब एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे तो मैं अपने आपको दिखाता हूँ, राइट। तो अभी ऐप शेयर करके वो रिफर रन करने वाला वो है, तो वो इसमें नहीं आता, वो एफिलिएट में नहीं आता। तो रिफर एंड शेयर करके मतलब आपको एक बाय डिफॉल्ट लिंक बना देता है, तो कोई भी डाउनलोड करता है तो वो कमाते हैं। बट हम लोग उससे अच्छी चीज सीख रहे हैं, मार्केटिंग। मार्केटिंग ऐसी स्किल है जो आपको अगर अच्छे से आ गई तो ग्लोबली एक होता है ना, एक सेल्स एग्जीक्यूटिव जो होता है, अगर एक अच्छा सेल्समैन है तो पूरे दुनिया में कहीं भी रह सकता हूँ, क्योंकि इसके बाद एक एक्सपर्टीज है। तो अगर आपके पास ऑनलाइन प्रोडक्ट को प्रमोट करके अच्छे से सेल निकालने की टेक्निक आ गई तो आपके पास इससे अच्छी स्किल कोई हो नहीं सकती। और हर कंपनी को एक मार्केटर की जरूरत है, चाहे वो फिजिकल मार्केटर हो या डिजिटल मार्केटर हो। तो डिजिटल मार्केटर बन जाते तो बहुत अच्छी बात है। जैसे अमन गुप्ता की स्टोरी आपको पता ही होगी कि JBL की जो भी इसकी वर्थ है, जो भी इसको वहां तक पहुंचाने में सबसे ज्यादा हाथ अमन गुप्ता का था। तो अगर वो चाहता है, अगर वो उसे पता है कि मैं ऐसी कंपनी को बना के मैं ऐसे भी ग्रो कर सकता हूँ, तभी तो उसने 4-5 पार्टनर को ज्वाइन करके उसने बोट कंपनी लॉन्च किया ना। आज JBL को लोग इतना नहीं जानते, लेकिन बोट कंपनी को काफी लोग जानते हैं, क्योंकि उसे पता है द वे ऑफ टेक्निक कि हमें बिजनेस को ग्रो कैसे करना है। तो आपके पास खाली वो टेक्निक चाहिए, आप फिर वैसे कितने भी बिजनेस आप बना सकते हो। ओके, अभी किसी का कुछ क्वेश्चन, कुछ डाउट जो आप पूछना है ऑनलाइन? ऑनलाइन फाज जी, सुजाता, साकिब? नो सर। ओके, साकिब, सुजाता जी? नो सर, समझ गए। ओके, सुजाता जी ऑडिबल नहीं है क्या? हेलो। यस यस। यस ओके, सर। एनी डाउट सुजाता जी? कुछ क्वेश्चन है? डाउट तो नहीं है, बट आई जस्ट वांट टू नो, सर, ये जो हम सब सीखेंगे ये फर्स्ट वेबसाइट बना के सीखेंगे या फिर वेबसाइट क्रिएशन बाद में होगा, कैसे? नहीं, सब क्रिएशन Because बनाएंगे, बनाते हम लोग सब पहले प्रैक्टिकल। वेबसाइट, बिकॉज ये जो एड ये सब है ये तो पूरे इस पे होता है ना, तो पहले वेबसाइट क्रिएशन होगा क्या, नहीं कैसे नहीं, लर्निंग में क्या होगा पहले? पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, इनका क्वेश्चन बहुत अच्छा था। पहले हम लोग है ना एड वाला पार्ट पूरा स्टार्ट करेंगे, बट मेटा पे आप जैसे आओगे उस पे जो सेल्स कैंपेन आएगा, गूगल आप जैसे सीखोगे तो उसमें जो सेल कैंपेन आएगा, तो सेल कैंपेन जब जब आएगा हम लोग वहां सेल कैंपेन पे स्टॉप कर देंगे, राइट। फिर उसके बाद हम लोग वेबसाइट डिजाइनिंग स्टार्ट करेंगे, और वेबसाइट के बाद जब आपका वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगा फिर इन टूल से वापस से आएंगे सेल कैंपेन के लिए, क्योंकि आपको वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी। तो इनका क्वेश्चन अच्छा था, तो उसके लिए हम लोग कुछ ब्रेक लेंगे। अगर मैंने आपको मेटा सिखा दिया पूरा और फिर आपको दूसरा मॉडल सिखाया और ऐसे करते हुए कोर्स खत्म हो गया, तो मेटा आप भूल जाओगे, गूगल भी भूल जाओगे।
लेकिन मैंने 80% सिखाने के बाद वापस से 1.5 महीने के बाद फिर हम लोग अगर इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो आप रिकनेक्ट हो जाओगे और आपको चीजें याद हो जाएगी। तो इसके लिए वहां पे हम लोग सेल्स कैंपेन में स्टॉप करेंगे। वेबसाइट डिजाइनिंग पार्ट होने के बाद यहाँ पे हम लोग सेल्स कैंपेन रन करेंगे, जिससे आपका जो मेन गोल था वही है ना, सेल। तो सेल वाला पार्ट वहां पे आपका कवर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे लेक्चर को स्टॉप करते हैं और कल मिलते हैं। और कल से लेक्चर स्टार्ट होगा एकदम शार्प 3 बजे स्टार्ट हो जाएगा, ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा समय मिले आपको टॉपिक कवर करने के लिए। तो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, यहाँ पे लेक्चर को वाइंड अप करते हैं और कल मिलते हैं। ओके, कैसा रहा डेमो सेशन? Thank you so much. यस, मोस्ट वेलकम। It was very informative. Yeah. या बाय।